اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باقی لوگ سو رہے ہیں؟ اچھا شروع کرتے ہیں انشاءاللہ کلاس پھر۔ چلیے یہ شیئر ہو گیا آپ کے ساتھ، میں نے کیا ہے۔ جی باجی ہو گیا ہو گیا۔ چلیے میں اس میں پہلے آپ کو بتا دیتی ہوں، اس میں سے کوشچن آ رہے تھے کہ کیسے کرنا ہے نا اس کو، تو میں نے کہا تھوڑا اس کو بتا دیتی ہوں۔ تو آپ اس میں دیکھیں میں نے آپ کو 4 اوزان دیے تھے نا، اوزان یاد ہے نا، مفاعیلو اور مفاعیلو، اور جو تھا ایک میں لکھ دیتی ہوں یہاں پہ دوبارہ سے تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ ایک تو مفاعیلو تھا جیسے مساجدو، اور دوسرا کیا تھا آپ لوگ بولیے، اگر وزن ہی نہیں یاد تو پھر آپ کیسے کریں گے؟ مفاعیلو اس میں یا آئے گی، صرف یہ فرق ہے، باقی وہی ہے اوپر والا۔ اور دوسرا جو ہے، تیسرا جو ہے وہ ہے آپ کا افعلاؤ، الف سے ہے یہ، ٹھیک ہے، باقی کیا تھے وہ میم سے تھے۔ افعلاؤ، اچھا جناب، اور افعلاؤ اس کے اوپر زبر، ٹھیک ہے، جیسے حرکات کرنی ہے ویسے بھی آپ نے دیکھنی ہے یہاں پہ، افعلاؤ اور فعلاؤ۔ اس کو نا مجھے تھوڑا لکھنے میں مشکل ہو رہی ہے، ایک سیکنڈ، صبح صبح ہاتھ نہیں چلتے اتنے۔ فعلاؤ، یہ اوزان ہے 4، کس کے اوزان ہے یہ؟ غیر منصرف کے اور جمع کے، اور جمع بھی کون سی؟ مکسر، جمع مکسر جو غیر عاقل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں غیر عاقل بھی ہے عاقل بھی ہے، تو ہم اس کو دیکھتے ہیں ابھی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے آپ مساکین کو دیکھ لیں، مساکین کس وزن پہ آ رہا ہے ان میں سے؟ چار اوزان ہے نا، تو مساکین کس پہ آ رہا ہے؟ میں تھوڑا بڑا کر دیتی ہوں۔ مفاعیل، یا ہے نا اس میں، تو یہ اس وزن پہ آ رہا ہے، سیکنڈ نمبر والے پہ آ رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو مساکینوں کس میں آ رہا ہے؟ پہلے والے میں، پہلے والے میں آ رہا ہے۔ اور مشارب کس میں آ رہا ہے؟ یہ بھی اسی میں آ رہا ہے، مشارب۔ ہاں مفاعلوں میں آ رہا ہے کہ اس میں یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ الف کے بعد 2 لیٹر ہیں سمپلی، اور جو پیچھے 2 لیٹر ان پہ بھی زبر آ رہی ہے جی۔ اچھا اس میں کیا مشکل ہے مجھے یہ بتائیں؟ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، جس میں یا آئے گی وہ مفاعلو کے وزن پہ ہوگا، اور جس میں یا نہیں آئے گی وہ مفاعلو کے وزن پہ ہوگا۔ جیسے مسابی ہو جو ہے یہ مصباح ان کی جمع ہے نا، اسی طرح ہاں مفتاح ان کی جمع، پھر مسانے ہو اس میں یا نہیں آ رہی تو یہ مفاعلو کے وزن پہ ہے۔ پھر ہاں پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو زیرو، یہ بھی اسی وزن پہ، الف سے پہلے 2 لیٹر ہیں، دونوں پہ زبر آ رہی ہے، اور آگے جو 3 لیٹر ہیں بیچ میں سکون آ رہا ہے، تو یہ مفاعلو کے وزن پہ ہو گیا۔ اسی طرح معائشو، مغانمو، تو یہ قرآن مجید میں آتے ہیں، تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ غیر منصرف جمع ہے، ان سب کے اوپر ایک پیش آئے گی۔ ایون ابلیس جو ہے نا یہ بھی غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آدم، اچھا یہ اگر اس وزن 4 اوزان پہ نام بھی آئے نا تو یہ سارے غیر منصرف ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آدم غیر منصرف ہے، آزر غیر منصرف ہے، لیکن ان کی وجہ کیا ہے؟ وہ جمع تو نہیں ہے نا، ان کی وجہ جمع تو نہیں ہے نا، نہیں، ان کی وجہ غیر منصرف، ہاں وہ غیر منصرف ہیں، وہ نان عربک نیم ہے نا، جی۔ تو ان کی وجہ کیا ہے؟ ان کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کے جمع ہیں، یہ 4 اوزان ہیں، تو یہ 4 اوزان والے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس میں سے دیکھ لینا، اس میں کوئی مشکل نہیں تھی۔ جیسے بھی ہے تو مفاعلو کے وزن پہ آ رہا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں شرکاء، یہ کس وزن پہ آ رہا ہے؟ شرکاء فعلاء کے وزن پہ آ رہا ہے۔ شعائر مفاعلو کے وزن پہ آ رہا ہے۔ شفہاء یہ کس پہ آ رہا ہے؟ فعلاء۔ ہاں شہداء، یہ فعلاء، تو اس میں جس میں شروع میں الف آئے گا نا
جیسے احادیث، اب یہ احادیث دیکھیں تو یہ بھی جمع ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں بھی آپ الف کے بعد دیکھیں 3 لیٹر آ رہے ہیں نا، جی آپ نے یہ دیکھنا کہ الف کے بعد 3 یا 2 لیٹر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، ٹھیک ہے، صحیح. تو بس آپ کا یہ کیا ہو جائے گا، چاہے شروع میں میم آئے یا نہ آئے، وہ آپ کا احادیثو ہو جائے گا، الف کے بعد اگر 3 لیٹر آ گئے، ٹھیک ہے، صحیح. پیچھے الف سے ٹھیک. پہلے 2 لیٹر ہیں، ان دونوں پہ زبر آ رہی ہے، شرائط تو یہی ہے نا، میم تو شرط نہیں ہے نا، میم شرط جی نہیں ہے، بالکل شرط یہ ہے کہ آپ کا الف جمع کے بعد 3 لیٹر ہو، مڈل پہ سکون ہو، ٹھیک ہے، صحیح اور شروع میں صحیح 2 لیٹر ہوں، تو بس اس طرح سے ہو جائے گا. باقی یہ احسن و افلو کے وزن پہ آتا ہے، یہ بھی آپ یہ جتنے بھی غیر منصرف قرآن میں آئے ہیں نا، جس وزن پہ بھی آئے وہ سارے دیے ہوئے ہیں یہاں پہ. اکثر و افلو کے وزن پہ وہ بھی غیر منصرف ہوتا ہے، اکبرو ہے نا، احمدو، وہ سارے غیر منصرف ہوتے ہیں. تو آپ کو یہ 4 اوزان دیے گئے تھے، ان پہ جو الفاظ آ رہے تھے وہ سارے جمع تھے اور جمع مکسر تھے، اور ان کو پتہ ہے کیا نام دیا جاتا ہے، یہ 4 اوزان پہ جو الفاظ آتے ہیں ان کا ایک نام ہے جو ابھی آپ کے لیے شاید مشکل ہو، لیکن کتاب میں آپ کی آیا ہوا ہے. جمع تو آپ کو پتہ ہے یہ جمع پلورل کو بولتے ہیں، منتہل جموع، منتہل جموع، منتہل اسی سے آتا ہے نا، منتہل جموع، یہ اس کا نام ہے. اگر مشکل لگتا ہے تو پھر آپ جمع مکسر بھی صرف کہہ سکتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے، یہ جو میں نے جملہ لکھا ہے جمع منتہل جموع، پتہ نہیں ہاں سے ہے یا عین سے، مجھے یہ یاد نہیں، میں کتاب میں دیکھ لیتی ہوں. تو جمع منتہل جموع جو ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ اس کی بعد کوئی اور جمع نہیں بنے گی، یہ وہ جمع ہے جس کے بعد کوئی اور جمع نہیں بن سکتی. مثلا آپ دیکھتے ہیں قوم ہے، فوج ہے، اس کے بعد جمع بن سکتی ہے نا، یہ خود بھی جمع ہے، قوم جمع ہے نا، جی بالکل. ہاں فوج جمع ہے نا. اب اس کی جمع کیا ہے، ایک اور جمع بن سکتی ہے نا، اقوام، افواج اقوام. ہے نا، تو اس کی کوئی جمع نہیں بنے گی، یہ بس لاسٹ جمع ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ آگے اور جمع بنانے سے اس کو انتہا ہو گئی اس کی. یہ لفظ جو ہے نا میں نے جو بتایا نا، یہ انتہا سے ہے. اچھا اس میں مجھے انتہا سے ہے تو پھر یہ 2 پیش آئیں گے اس میں، 2 پیش کہہ رہی ہوں، 2 چشمی ہے آئے گی اس میں، جی منتہا ہو جائے گا. منتہا انتہا سے ہے، یعنی جمع کی انتہا ہو گئی یہاں پہ، اس کے بعد کوئی جمع نہیں بنے گی. اور یہ اتنے سے چھوٹے سے لیول پہ آپ نے یہ بات سیکھ لی، یہ بہت ایڈوانس لیول میں گرامر میں جا کے سکھائی جاتی ہے. غیر منصرف اور منصرف جو ہوتے ہیں نا، یہ ان کے ریزن بتانا، ان کے اوزان بتانا، خاص طور پہ جو جمع منتہل جموع جو بتائی جاتی ہے نا، یہ والی بہت اینڈ پہ بتائی جاتی ہے، اس کے اوزان یاد کر. لیکن کتنے آسان ہے نا، آپ کی بک میں آئے ہوئے ہیں تو میں نے کہا چلیں پڑھا دیتی ہوں. ابھی آپ کی بک پہ آ جاتے ہیں، کلاس کا ٹائم ضائع نہیں کرتے. تو یہاں پہ جو اس شیٹ میں جتنے بھی دیے ہوئے نا، یہ ہر وزن پہ آنے والے غیر منصرف قرآن کے دیے ہوئے، ہر وزن پہ آنے والے جتنے بھی آئے ہیں. اب شرکاء میں نے بتا دیا، شہداء یہ ایک ہی وزن پہ آ رہے ہیں. پھر اس میں دیکھ لیں آپ جیسے یہ 66 ہے انسا، پھر 63 املی، یہ لفظ نہیں وزن پہ آئیں گے. املی نہیں ہے، یہ کہاں ہے؟ اچھا اور دیکھیں ابھی عربی آپ کوشش کریں گے نا، بغیر جیسے اردو پڑھتے ہیں تو بغیر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ابلیس کو ابلیس ہی پڑھنا ہے. ابلیس کو آپ ابلیس کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ اردو میں بھی آتا ہے. جی باقیوں کا آپ کو نہیں پتا چلا نا، آپ نے املی بنا دیا. کہاں ہے، کون سے نمبر پہ املی؟ میم یہ تھوڑا سا اسکرول کریں نیچے، اچھا یہ 63 پہ. اچھا 63 پہ ادھر سے ہے نا، املی ادھر ہے، سے شروع ہو رہا ہے، املی انگلش کی سائڈ سے شروع ہو رہا ہے. اچھا املی یہاں پہ ہاں، جی تو یہ املی کیا ہے، ہوگا. امانیہ. امانیہ، اب امانیہ میں بھی کیا آپ کا یہ جمع ہے، امانی یو ہوتا ہے، اور پھر امانیہ ہوتا ہے، الیاسو الیاسا. اس کے بارے میں بتاتی ہوں. اناسی جو ہوتا ہے نا، اناسی ہوتا ہے، یہ اناسی نہیں ہوتا جیسے ہمارا 69 اناسی بولتے ہیں نا، ویسے ہے یہ اناسی نہیں، یہ انسان کی جمع ہے. انبیاء یہ آپ کو پتا ہے، انسا یہ بھی جمع ہے، مؤنث کی جمع انسا، یہ سب قرآن میں آتے ہیں، یہ سب غیر منصرف ہیں. اب آتے ہیں اس پہ عملی، جو آپ کا املی ہے. اچھا یہ کس وزن پہ آتا ہے، اب اس کو دیکھتے ہیں. اس میں یہ آپ کا آتا ہے السلام علیکم. املا. ہاں بتائیے، بولیے. املی ہے یہ، املی. املی ہے. اچھا آپ نے دیکھا ہے اس کو؟ قرآن میں آتا ہے املی لہم، ان کو مہلت دیتے ہیں ہم.
اچھا تو یہ پیش سے آتا ہے نا, تو یہ اب دیکھیں اوزان ڈفرینٹ ہے لیکن ہیں سارے ایک بات مشترک ہے سب میں, اور وہ کیا ہے کہ سارے کے سارے غیر منصرف ہیں. ٹھیک ہے, املی آتا ہے, اور اس کا یہ جمع نہیں ہے, اس کو جمع مت کہیے گا. ٹھیک ہے, ہر ایک جمع نہیں ہے, سب جمع نہیں ہے, کچھ جمع ہے کچھ جمع نہیں ہے, تو اس میں آپ نے فرق کرنا ہے. اور لیکن ہیں سارے غیر منصرف, جیسے احمد جمع تو نہیں ہے نا, آخر اخرا جو ہے یہ آپ کا مؤنث ہے, اور اس کو پڑھنا بھی صحیح ہے اخرا, اور اس کی جو واحد ہوتا ہے وہ آخر مذکر ہے, اخرا مؤنث ہے, آخر مذکر ہے. یہ سب ہم قرآن اپنی بک میں پڑھ چکے ہیں. تو ڈفرینٹ اوزان پہ ہیں. اول اولا بھی آپ پڑھ چکے ہیں, اور دس الاول اور اولا بھی پڑھ چکے ہیں. پھر اولیاء, تو جتنے بھی ہیں یہ غیر منصرف ہیں. ان میں بکہ تو یہ مکہ کا پرانا نام ہے, اب مکہ ہو گیا, پہلے بکہ تھا. شہر و ملکوں کے نام اور جو ہوتے ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں. پھر بابل. اچھا املی کا میں خود بھی دیکھوں گی. اچھا مجھے ذرا سا آیت کا وہ پکچر بھیج دیجیے گا, ٹھیک ہے, تاکہ مجھے تسلی ہو جائے. ویسے تو آپ صحیح کہہ رہی ہوں گے, آپ نے کہیں نہ کہیں پڑھا ہوگا. میری نظر سے اس طرح سے گزرا نہیں نا کبھی کہ میں نے اس کو غیر منصرف کے طور پہ پڑھا. ٹھیک ہے, وہ املی لہم ان کید متین. ہاں چلیے ایک دو آگے ہیں نا, صحیح. تو سمجھ آ گئی آپ کو کیسے کرنا ہے. اس میں سے صرف آپ نے یہ 4 اوزان ڈھونڈنے ہیں فی الحال جو میں نے بتائے تھے. مقالید یہ کس پر ہے, یہ بھی آپ کا یا آ رہا ہے, الف سے پہلے 2 لیٹر دونوں پہ زبر ہے, تو یہ اسی میں آئے گا. مقالید مفاعیل وزن پہ. مقام او, اب الف کے بعد 2 لیٹر آ رہے ہیں تو یہ ظاہر مفاعیل کے وزن پہ ہوگا. منازل 2. منافع کتنے اردو میں لفظ یوز ہوتے ہیں, اور یہ جو جمع مکسر ہے نا, اس کی سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے کہ اردو میں یوز ہو رہی ہوتی ہے, اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے منافع کو کیسے پڑھنا ہے, ورنہ تو منافع بھی پڑھ سکتے ہیں نا, ہے نا. تو منافع کیوں پڑھیں گے, کیونکہ یہ مفاعیل کے وزن پہ ہے. تو منازل پتہ ہے ہمیں. اچھا پھر اس کے بعد موازین جو ہمارے اوزان ہے, یہ اوزان کی جمع ہے نا, وزن کی بھی جمع ہے, اوزان کی بھی جمع ہے. اس کے بعد کوئی اور جمع نہیں بنے گی. ٹھیک ہے, وزن کی جمع اوزان ہوتی ہے اور اوزان کی جمع موازین ہوتی ہے, اس لیے اس کو جمع منتہل جمع کہتے ہیں. مواتن, مواقیتو, یہ سارے ورڈ آپ نے قرآن میں پڑھے. یہاں موالی آیا, یہ کس وزن پہ آ رہا ہے, ضروری نہیں ہے ان 4 اوزان پہ آئے, یہ مت سوچنا. تو جو آ رہے ہیں وہی آپ کو چوز کرنے ہیں بیچ میں سے, اور یہ دیکھنا ہے. باقی عمرانو آ رہا ہے, توبہ یہ جنت میں درخت کا نام ہے, ترائکو وہ مفاعلو کے وزن پر. چلیے بہت ہے انشاءاللہ. اور یہ ہمارا ہے نیکسٹ لیسن جو ہم نے پچھلی دفعہ نہیں کیا تھا, اور ہم فیل کی بک پہ چلے گئے تھے, لیکن اچھا ہوا اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت تھی. اب یہ ہم آسانی سے کر لیں گے نا. اچھا جناب, ابھی کسی کا ایک کوشچن آیا تھا, میں اس کا بھی جواب یہاں پہ دے دیتی ہوں. وہ کہہ رہی تھی کہ خرجہ, ٹھیک ہے نا, اور انہوں نے تو اس پہ حرکات بھی نہیں لگائی تھی, میں لگا رہی ہوں. خرجنا, فوزیہ یہ کیا بنے گا خرجنا, اس کا میننگ کیا ہوگا؟ خرج نہ, ہم سب نکلے. ہم سب نکلے. یہ مرکب اضافی تو نہیں بن سکتا نا, میں نے بتایا ہوا ہے کہ ضمیر سے پہلے اگر کوئی نون آ جائے تو وہ مرکب اضافی بن جاتا ہے. یہ تو پورا جملہ ہے. ہاں یہ تو پورا جملہ ہے, پورا جملہ بھی نہیں ہے لیکن بن سکتا ہے, کیونکہ خرج ایک ایسا فعل ہے جس کو مفعول کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ جیسے جلسا, جلسنا, ذہبنا, ہم گئے, ہم چلے گئے, خرجنا. تو کچھ فعل ہاں اس کو مفعول کی ضرورت نہیں, تو یہ تقریباً پورا کمپلیٹ جملہ ہی ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہمیں, میں نے لاسٹ کلاس میں شاید جاتے جاتے بتایا تھا کہ کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جن کو مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اب اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے, تو یہ فعل کون سا ہے, اس کو کیا کہیں گے, خرجنا کو فعل لازم کہیں گے. آپ میں سے کچھ کو شاید پتا ہو کہ یہ فعل لازم ہے. ٹھیک ہے, لازم وہ فعل ہوتا ہے جس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ اپنے فاعل سے ہی. لازم کا مطلب وہ اردو والا نہیں ہوتا. اگر آپ اس کا مطلب سمجھ جائیں گے لازم کا کیا مطلب ہوتا ہے, پھر آپ کو آرام سے بات سمجھ آ جائے گی. لازم کا مطلب ہوتا ہے چمٹا ہوا ہونا. التزام ہے نا, خانہ کعبہ کے اندر کوئی جگہ بھی ہے نا خانہ کعبہ کے ساتھ جو التزام کہلاتی ہے,
ऐसे ही मुल्तजिम है ना, हाँ मुल्तजिम 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 सॉरी, मुल्तजिम। हाँ तो वो लफ्ज नहीं आ रहा था। तो मुल्तजिम, और उसका भी रूट वर्ड लाम ज़ई मीम। तो इसका मतलब मुल्तजिम वो जगह है जहाँ पे हाजी आके वहाँ पे चिमटते हैं और दुआएं मांगते हैं और रोते हैं, तो वो इसी से है। तो लाजिम का मतलब होता है, लाम ज़ई मीम का मतलब होता है चिमटना, ठीक है। यानी फेल अपने जो फाइल होता है वो अपने फेल से चिमटा होता है बस। यानी इसका मतलब ये है कि जो फेल होता है उसका असर सिर्फ फाइल तक ही होता है, आगे नहीं जाता। फेल अपने फाइल से चिमटा होता है या फाइल अपने फेल से, एक ही बात है। तो फेल जब अपने फाइल से खाली चिमटा होता है, मुताद्दी तक नहीं जाता, तो वो आपका फेल लाजिम होता है। इससे आपने याद रखना है, फेल अपने फाइल से ही चिमटा हुआ है। जब वो आगे जाके फेल आगे जाके किसी और पे भी असर करता है मुताद्दी बीमारियों की तरह, तो वो फिर मुताद्दी हो जाता है। सही है, तो यहाँ पे ये क्लियर हो गई बात। तो पीछे आपने देखना है, ना जमीर नहीं देखनी, आपने कोई भी जमीर नहीं देखनी, बल्कि उससे पहले आपने देखना है कि इस्मार है या इस जमीर से पहले आपका इस्म भी आ सकता है, फेल भी आ सकता है, और इससे पहले हर्फ जर भी आ सकता है, और इस जमीर से पहले इन्ना भी आ सकता है, इन्ना उसकी बहनें भी आ सकती हैं, ठीक है। ये जो जमीर है ना, 4 चीजें मैंने बताई हैं। फेल भी आ सकता है जैसे यहाँ पे आ रहा है, इसमें भी आ सकता है, उस वक्त मुरक्कब इजाफी बनेगा जब यहाँ नौन आएगा। मुदाफ हमेशा नौन होता है, तो वो मुदाफ इलैह बन जाएगी। तीसरी चीज हर्फ जर आ सकता है, जैसे लन्ना, है ना, और भी बन सकते हैं। तो लना जमीर पे जब ली जाता है तो वो ला हो जाता है, ली जब होता है लिए वाला, वो जमीर पे जाता है तो लना हो जाता है, लहूमा लहू हो जाता है। अच्छा, चौथी बात जो मैंने बताई है इन्ना, इन्ना के बाद भी यही जमीर आती है, इन्ना ना, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी पोजीशन क्या होती है, यहाँ पर इसकी पोजीशन क्या होती है, इन्ना के बाद मंसूब होती है यहाँ पे, और यहाँ पर भी इसकी मंसूब पोजीशन होती है, फेल के साथ भी मफूल बन रहा होता है। नहीं, यहाँ पे इसकी मरफू पोजीशन है क्योंकि ये फाइल बन रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर पीछे आप देखें ना जमीर से पहले सुकून आ रहा है, तो वो उसकी पोजीशन मरफू होगी, वो फाइल बन रहा होगा, फाइली हालत में होगा। और अगर यहाँ पे जबर आ जाए तो फिर उसकी फाइली हालत नहीं होगी, फिर उसकी मफूली हालत होगी। जैसे जालना और जालना, मैंने बताया था इसकी मिसाल आप लोगों को, खाने की दुआ में जो जालना आता है और जालना आता है, बताया है ना। ये तो मेरा बेसिक होता है बताना, मैं अभी बता देती हूँ आप लोगों को। देखिए, अभी ना जमीर से पहले क्या आ रहा है, जबर आ रही है, ठीक है, ना जमीर से पहले जबर आ रही है। अभी यहाँ पर इसकी जो पोजीशन है वो रफ़ई नहीं है, यानी ये फाइली हालत में नहीं आ रही, फाइल नहीं बन रही। यहाँ जब सुकून आएगा ना पहले, तब वो फाइली हालत होगी। वी वेंट आउट, हम बाहर निकले, ठीक है ना, जैसे उन्होंने बताया था फौजिया ने। यहाँ पर हम बाहर निकले तो काम कौन करने वाले हैं, हम हैं, ठीक है। तो जालना में भी ऐसा ही होगा, अगर आपका सुकून आता है तो क्या मीनिंग होगा जालना का, जाला का मतलब आता है सबको, जी, हमने बनाया। हमने बनाया, ठीक है ना। तो इसमें फाइली हालत है ना, ने में तर्जुमा आ रहा है ना, जी फाइली हालत है ना। लेकिन जैसे ही आप इसको जालना करते हैं, ना जमीर से पहले जबर आ जाती है। इस एक एग्जाम्पल को याद रखेंगे ना, पूरे कुरान का तर्जुमा आप आराम से कर लेंगे। जालना, अब इसमें आप देखिए, हाँ ये मैं ट्राई करूं। हाँ आप करें। उसने बनाया हमें। उसने बनाया हमें, तो यहाँ पर इसकी मफूली हालत हो गई ना, हमको, यहाँ ने तर्जुमा आ रहा है, यहाँ को तर्जुमा आ रहा है ना। तो को तर्जुमा क्यों किया आपने, क्योंकि ना जमीर से पहले जबर आ रही है। जब ना जी जमीर से पहले पेश आएगी तो उसमें ने तर्जुमा होगा। लेकिन जिन्होंने क्वेश्चन किया था उन्होंने तो उसको बिल्कुल मुदाफ एंड मुदाफ इलैह बना दिया था। ऐसा करना सही है? मुदाफ और मुदाफ मुरक्कब इजाफी बन सकते हैं ये? नहीं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये फेल है। मुदाफ जो होता है ना वो कोई नाउन होता है। चले इसी जमीर से आप बनाइए जरा, मुदाफ मुदाफ इलैह बनाइए। जालल नहीं, जालल्लाहु
नहीं, हाँ नहीं, नहीं, जाला तो नहीं। फेल ही है ना, फिर भी वो तो फेल ही है ना, फिर भी आप लगाइए ना कि मेरी हमारी किताब, किताबू, किताब, किताबुन, किताबू ना। अभी अब देखें, किताब ना होगा। हाँ मेरी किताब। हाँ, हमारी किताब, किताब भी होगा तो मेरी किताब होगा ना, मेरी किताबू किताब। ना, ये तो आप पढ़ चुके हैं, ये मुजाफ मुजाफिल है। अब इसमें क्या, ये भी ना ही जमीर है, वही जमीर है, लेकिन डिफरेंट तरीके से यूज हो रही है ना। इसी तरह कुरान मजीद में आता है, अगर मैम अगर फिर इसका वो जअलनी होगा तो फिर वो क्या होगा? वो तो फेल ही है, जाला तो फेल ही है ना। हाँ, हाँ, जाला नहीं करेंगी तो उसने बनाया मुझको। आप जो दुआ की जिक्र कर रही है ना, तो इस दुआ में या की दुआ आती है ना, जो आप दुआ खाना खाने के बाद में या आती है, असल में या आती है। जब आप सबके लिए दुआ मांग रहे होते हैं तो ना का लफ्ज यूज करते हैं, जब अपने लिए मांग रहे होते हैं तो क्या दुआ पढ़ेंगी? या यूज करते हैं, या। जालनी व सकानी, आगे रब्बी क्या है? अजलनी हाँ, आगे क्या है? सकानी के बाद क्या है? उसने पिलाया मुझको, वजअलनी, वजअलनी मिनल मुस्लिमीन। हाँ, वजालनी। तो वहां उस दुआ के अंदर जालनी, जालनी ना कहे ना, मैंने बनाया। जब आप जालनी कहेंगी तो उसका मतलब हो जाएगा कि मैंने बनाया। जाअलनी, जालनी हाँ, पढ़ेंगे, सब पे जबर। हाँ, तो ये मुझे दुआ बनाया। जो है ना, इसके अंदर आपको ग्रामर बहुत सारी मिल जाती है। अब देखिए, मैंने जी। सारी सूरतें लिख ली, अभी मैं एक सूरत और भी लिखने वाली हूँ ना जमीर की, और वो है इन्ना ना, इन्ना ना। देख हरकत से मीनिंग कितना चेंज हो रही है ना। यही तो मैं बता रही हूँ आपको, ग्रामर को इस तरह सीखना है आपने, ऐसे उतारना है। अब इन्ना लगने से ये जमीर जो है ना, ये रफई हालत में भी नहीं है, ये नस्बी हालत में है, क्योंकि इन्ना क्या कर देता है? मंसूब कर देता है। नसब देते हैं। हाँ, जी, मंसूब जी। कर देता है। तो यहाँ पर क्या हालत है? यहाँ पे हर्फ जर आ रहा है ना, आपको पता है ये हर्फ जर ली है, सबको पता है, ये सब इससे इत्तेफाक करते हैं कि ये ली है। जी, हाँ, ये ली है, लिल्लाही वाला ली है, लिए वाला। लेकिन जब ये जमीर पे जाता है तो ये क्या बन जाता है? ला बन जाता है। मीनिंग में कोई चेंजिंग नहीं आती, हमारे लिए। तो ये भी अभी आप देखें, इसके पीछे हर्फ जर आ रहा है, तो ये कौन सा मुरक्कब बन रहा है? हर्फ जर और एक नौन आगे आ रहा है ना, जमीर, जमीर नौन नहीं होती है ना, कौन सा मुरक्कब बन रहा है? मुरक्कब जारी। मुरक्कब जारी, ठीक है। अब यहाँ पर इन्ना ना, ये इन्ना का इसम कहलाएगा, आगे इन्ना की खबर आएगी। अच्छा, इन्ना ना को दो तरीके से लिखा हुआ पाएंगे कुरान मजीद में, इन्ना ना भी पाएंगे और इन्ना भी पाएंगे, है ना? सही है, जी, जी। इन्ना भी। अब सही इस इन्ना के अंदर आपने सिर्फ बेशक का तर्जुमा नहीं करना, सिर्फ बेशक का तर्जुमा तो इस इन्ना का होता है ना, इसमें तो ना भी लगा हुआ है, इसमें तो ना भी लगा हुआ है। तो इसका तर्जुमा आप जब करेंगे तो बेशक हम, ठीक है, इसका करेंगे तो सिर्फ बेशक, बेशक करेंगे। जी, तो यानी वो अलिफ का ध्यान रखना है हमने। समझ आई। हाँ, यहाँ पे दो नून हो गए ना, दो नून तो खैर यहाँ पर भी लिखने का तरीका है। अब इसमें कितने, तीन नून तो नहीं डाल सकते ना हम, तो हमने दो ही नून के। इसी तरह आप इन्ना नी भी लिख सकती हैं और इन्नी भी लिख सकती हैं, है ना? इन्नी भी लिख सकती हैं और इन्ना नी भी लिख सकती हैं। ये दो लफ्ज जो हैं इसी तरह से लिख सकते हैं, इन्नी भी लिख सकती हैं और इन्ना नी भी लिख सकती हैं, दोनों तरह से कुरान में आता है, ये भी आता है। अच्छा, बहरहाल मैं यहाँ पे थी कि ना जमीर से पहले जब फेल आएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ना जमीर से पहले जब फेल आएगा तो वो क्या बनेगा? अगर उस जमीर से पहले सुकून है तो वो फाइली हालत में होगा, ने में तर्जुमा करेंगे, जाअलना। अब यहाँ पे तर्जुमा ये नहीं होगा उसने बनाया हमको, नहीं, हमने बनाया। मैम हम कहते हैं ना रब्बाना रब्बाना ज़लमना अनफुसना, तो उसमें ज़लमना। अब आप जितना गौर करेंगी ना, अब आपको बोल बोल के आगे से बताएंगे कि हम फाइल हैं, हम मफूल हैं। ना जमीर से पहले भी, अब हर फेल का आप तर्जुमा कर सकते हैं जो कि ना जमीर से आ रहा है। आपने देखना है पीछे जबर आ रही है या पीछे सुकून आ रहा है। अगर सुकून आ रहा है तो सोचने की जरूरत नहीं है, ने में तर्जुमा करते हैं। अगर पीछे जबर आ रही है तो उसका तर्जुमा को में कर दें, ना जमीर का, उसको मफूल बना दें। और फाइल कहाँ से लेंगे? फिर फाइल इसके अंदर हुआ होगा ना, फाइल तो मस्ट है, फाइल तो आपको चाहिए। यहाँ पे फाइल आपने ना जमीर को बना दिया,
یہاں پر فائل اگر ضمیر کے اندر بنائیں گے تو غلط ہو جائے گا, ٹھیک ہے, اور یہاں پر اگر فائل آپ اس کو بنا دیں گے تو غلط ہو جائے گا, اس کو مفعول بنانا ہے, اس کا ترجمہ کوڈ میں کرنا ہے. فوزیہ سمجھ آیا؟ جی میم اچھی. ہاں, تو جعلنا اور جعلنا دونوں کا مطلب اپنے پاس لکھ لیں, باقی ظلمنا ظلمنا وہ سارے اب آپ کر لیں گے, ٹھیک ہے. اس طرح کتابنا اگر آپ دیکھیں پیچھے اسم آ رہا ہے, جعلنا میں اور کتاب میں بہت فرق ہے نا. کتاب از اے نون, جعل فعل ہے, ٹھیک ہے. تو جب تینوں پہ زبر آ جاتی ہے یا بیچ میں سکون, دو لیٹرز کے بعد سکون ہو جاتا ہے تو وہ فعل ہوتا ہے. جعل بھی فعل ہے, جعل بھی فعل ہے. تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں کتاب جو ہے وہ اس میں یہ مضاف بن رہی ہے, الف لام تنوین نہیں ہے اور یہ مضاف الیہ ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح لی حرف جر ہے, وہ ضمیر پہ, صرف لی حرف جر ضمیر پہ جا کے لا ہوتا ہے, باقی کوئی نہیں ہوتا. آپ فی کو دیکھیں تو فی نہ ہی ہوتا ہے, اور بھی الینا الینا, باقی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا, ٹھیک ہے. وہ اسی طرح رہیں گے جیسے وہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو علینا اسی طرح علیہم, صرف لی ضمیر, لی جو حرف جر ہے نا اس کے ساتھ تھوڑا ہوتا ہے معاملہ کہ جب یہ ضمیر پہ جائے گا تو یہ لا ہو جائے گا, اس کو البتہ والا لام وہ نہ سمجھے, البتہ والا, کیونکہ قرآن مجید میں لام زبر کے ساتھ بہت سارے آتے ہیں. تو اگر آگے ضمیر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ لیے والا لام ہے, لہم لکم. اچھا وہ جو لام تاکید بولتے پھر وہ کیسے پہچانیں گے؟ پھر ایک لام تاکید بھی ہوتا ہے نا, اس کے آگے ضمیر نہیں ہوگی نا, اچھا اس کے آگے ضمیر نہیں آئے گی. آپ قرآن مجید میں دیکھیں آپ کو اس کے بعد ضمیر نہیں آئے گی, نون آئے گا, ٹھیک ہے. اور جو ضمیر کے ساتھ آئے گا وہ لیے کا معنی دے گا, لازم لیے کا معنی دے گا, اور کوئی میننگ نہیں ہو سکتا, فور کا میننگ دے گا, اور صرف لی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے, باقی کسی کے ساتھ نہیں ہے. تو انشاءاللہ ان کو اپنے ہاتھوں سے تھوڑے تھوڑے یہ ان کو میں کہتی ہوں ان کو جیمز کہتی ہوں, یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس جو ہیں ان کو, یہ کسی ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی ہیں یہ, کیونکہ یہ رٹا لگانے والی چیزیں نہیں, یہ سمجھنے والی چیزیں, گرامر, ٹھیک ہے. اس کے فارمولا سمجھنے پڑتے ہیں. ابھی کل پتہ نہیں کسی کا کوشچن تھا ایک, تو وہ پوچھ رہی تھی کہ اتنا آسان سا کوشچن تھا جیسے آپ بھی کر لیں بڑے آرام سے, اس میں کچھ آپ کو نکرہ, دونوں نکرہ اسم دیے ہوئے تھے, کچھ میں ایک معرفہ اور ایک نکرہ دیا ہوا تھا, اور یہ ان کو کہنا تھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اس میں جملے کون سے ہیں اور مطلب ہے فریزز کون سے. تو میں نے آپ کو فارمولا بتایا کہ جملے کا فارمولا کیا ہے, ذرا بتائیں مجھے. معرفہ پلس نکرہ. ہاں, تو بس جہاں معرفہ نکرہ میں ان کو فارمولا بتا دیا, اور وہ خوش ہو کے کہتی میں اتنے دنوں سے پریشان ہوئی, میرا ٹیسٹ آیا ہوا. میں نے کہا میں ٹیسٹ میں نہیں بتا دی, میں نے ان کو فارمولا بتا کے آنسر نہیں بتایا, اور ان کو ساری بات سمجھ آ گئی. میں نے اس کو نہیں بتایا نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 یہ آپ کے کیا ہے, ناقص ہیں, اور باقی جو ہیں وہ کچھ نہیں بتایا, صرف فارمولا بتا دیا, اس نے کر لیا اپنا ٹیسٹ. الحمدللہ. ہاں, آپ جتنے بھی ہوں گے نا نکرہ یا معرفہ دونوں میچ ہوں گے تو وہ آپ کے کیا ہوں گے, وہ آپ کے ناقص ہو جائیں گے. چاہے مرکب اشاری ہو, مرکب توصیفی ہو, کوئی بھی ہو, وہ آپ کا ناقص ہو جائے گا. جیسے ہی وہ اپوزٹ ہوں گے, ایک معرفہ ہوگا ایک نکرہ ہوگا, تو وہ آپ کے جملہ بن جائیں گے, کمپلیٹ جملہ بن جائیں گے. وہی 2 ورڈ, انہی سے جملہ بن رہا ہے, انہی سے ناقص ہو رہا ہے, نقص پیدا ہو رہا ہے. چلیے اب ہمارا جو یہ ٹاپک ہے سب کچھ بلا دیں اپنے دماغ سے, اور یہاں سے پڑھنا شروع کریں. طاہرہ آپ نمبر 6 پڑھیں, یہاں سے ہم نے چھوڑا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نمبر 6 اجعل کلم من الکلمات الآتیتی مفعولا به واضبط آخرها. Use each of the following. اچھا, اس کو خود ترجمہ کرنے کی کوشش کریں نا. دیکھیں خود ترجمہ, آپ لوگ اس اسٹیج پہ ہیں, خود ترجمہ کر سکتے ہیں. اب اجعل کیا ہے, اجعل بنائیے, ہاں بنائیے. جب دیکھیے اس میں عورتوں کو بھی خطاب ہے, مردوں کو بھی خطاب ہے. جب دونوں کو مکس خطاب کیا جاتا ہے تو پھر کون سا صیغہ یوز کیا جاتا ہے؟ امر کا. نہیں, مذکر کا. اچھا, مذکر کا. اس کا مؤنث بھی ہوتا ہے نا, اجعلی مؤنث ہوتا ہے, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اجعلی. صحیح.
انہوں نے کہا اجعل تاکہ مذکر دونوں کورڈ ہو جائے نا. اب یہ مرد بھی کتاب پڑھتے ہیں, عورتیں بھی پڑھتی ہیں, تو دونوں جب ہم صحیح. مذکر کا صیغہ یوز کرتے ہیں تو سب کور ہو جاتے ہیں. صحیح. تو اب یہاں پر کیا ہوا, اجعل یہ فعل امر ہے, ٹھیک ہے نا, کمانڈ ہے, اور اس میں کیا ہے آپ کا فائل جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر ہی ہوتا ہے. کیا فائل ہوگا؟ جی آپ جب بنا, بھی کیونکہ یہ سیکنڈ پرسن کے اس سے لیتے ہیں نا اس ہاں کو. تو انتا, انتا جی انتا. انتا کہیں گے, انتا میں سب شامل ہے, عورتیں بھی مرد بھی, ٹھیک ہے. جی بالکل. اگر اجعلی کہتے تو اس میں انتی ہوتی, اب انتی صرف عورتوں کے لیے مخصوص ہو جاتا, تو یہ دونوں کو کور کر رہا ہے. یہ مذکر کا صیغہ ہوتا ہے نا. دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا کہتے ہیں نا, اب کیا وہ حکم صرف جی مردوں کے لیے ہوتے ہیں؟ نہیں, سب کے لیے ہوتا ہے. تو آمنوا اللہ تعالیٰ مذکر کا صیغہ یوز کرتے ہیں نا, جی مؤنث کا تو نہیں لاتے, تو اس میں سب کور ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر ویسے بھی اتھارٹی تھوڑی اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا تو مرد کو بنایا نا, تو جو چیز بھی جو بھی آرڈر آتا ہے اس میں مرد پہلے اور عورتیں بعد میں شامل ہوتی ہیں. اس کی ایک ایگزامپل میں دیتی ہوں, شاید دی ہو کبھی نہیں دی ہو. اگر آپ کے پاس تینوں عورتیں ہیں تو آپ کون سا صیغہ یوز کریں گی, اور تینوں مرد ہیں تو کون سا صیغہ یوز؟ ہاں مؤنث کا یوز کر, مؤنث کا. تینوں عورتیں ہیں تو مؤنث کا, تینوں مذکر ہیں, مرد ہیں تو مذکر کا, ٹھیک ہے, یہ بات صحیح ہے نا. لیکن اگر مکس ہیں, ٹھیک ہے, دو عورتیں ہیں اور ایک مرد ہے, دو عورتیں اور ایک مرد ہے, تو آپ کون سا یوز کریں گی؟ مذکر کا. اس میں پھر سب کورڈ ہو جائیں گے. تو چاہے آپ کی 49 عورتیں ہوں اور ایک مرد ہو, تب بھی آپ نے مذکر کا ہی صیغہ یوز کرنا. یہ نہیں کہ یہاں تو بہت زیادہ عورتیں تو یہ رولز ہیں, ان کو یاد رکھیں, ٹھیک ہے. جتنی بھی عورتیں ہوں گی, ایک بھی مرد ان میں بیٹھا ہوا ہوگا تو آپ جمع کے صیغے سے مخاطب کریں گے, مذکر کے صیغے سے مخاطب کریں گے. جمع سے تو کرے گی نہیں, بہت سارے ہیں نا. اچھا, اجعل انت کلن, کلن یہاں پہ کیا بنے گا؟ منصوب اسم آیا, فعل کے بعد فاعل آپ نے بنا لیا. اب یہ کیا ہے, اب جب زبر آتی ہے تو وہ مفعول بنتا ہے ہمیشہ. مفعول بنتا ہے, بالکل. جن کو سمجھ آ رہی وہ بھی لے لیں, جس کو نہیں آ رہی وہ بھی لے لیں. جیسے میں کہتی ہوں ضرب حامد خالدن, تو خالدن کا ترجمہ کو میں کرتے ہیں, وہ مفعول ہوتا ہے. اور جس نے مارا ہے حامدن, اس پہ پیش آ رہی ہے, اس کا ترجمہ نے میں کریں گے, اور پہلے فعل آ رہا ہے ضرب, ٹھیک ہے. تو اس میں بھی ایسے ہی ہے, پہلے فعل ہے پھر اس کے اندر فاعل ہے. کبھی کبھی فاعل باہر ہوتا ہے, کبھی کبھی اندر ہی ہوتا ہے. اندر ہی ہوتا ہے. اچھا, کون سے دو صیغوں میں باہر ہوتا ہے؟ دو صیغوں میں باہر, ہاں, پہلے صیغے میں اور چوتھے صیغے میں باہر بھی آ سکتا ہے. میم یہاں پر آپ نے اجعل کا کیا میننگ بتایا تھا؟ اجعل کا, اجعل کا میننگ بنائیے, میک یا یوز, ٹھیک ہے نا. آپ اس صحیح میننگ اس ہوتا ہے بنانا. پتہ ہے جعل کے بہت سارے میننگ ہوتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں گی کس دن. جعل کے بہت سارے میننگ ہوتے ہیں. جعل کا ایک میننگ ہوتا ہے خلق کا, اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا. اب اس میں میننگ بنانے کا نہیں ہے, خلق کا ہے, ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی بنانے کا, ایک حالت سے دوسری حالت میں لے جانا بھی جعل ہوتا ہے. میم مجھے یہ پوچھنا تھا, یہاں پر ہم نے جو گردان پڑھی تھی نا, جعل کیسے فعل فعل, تو یہ اجعل کیا ہو گیا, یہ نہیں سمجھ آئی مجھے. ہاں, یہ جب آپ مضارع پڑھا ہے آپ نے؟ نہیں مضارع نہیں پڑھا نا, تو پھر ابھی آپ اجعل نہیں بنا سکتی, کیونکہ یہ مضارع سے بنا, یہ مضارع سے بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور ہے بہت آسان, بنانا کیسے وہ میں بتا دوں گی, لیکن ابھی آپ نے مضارع پڑھا نہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. اوکے, ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتا دیں, جعل کا مضارع ہوتا کیا ہے؟ یجعلو. ہاں, یجعلو ہوتا ہے. پھر مخاطب کا صیغہ جب لائیں گے تو تجعلو ہو جائے گا نا. تو پھر اس تجعلو سے پھر آپ کا یہ اجعل بنا ہوا ہے. اور بنا ہوا کیسا ہے وہ بہت آسان ہے, بس یہ ہے کہ بیچ میں ابھی آپ نے مضارع پڑھا نہیں, ٹھیک ہے. تو علم کو صبر کے ساتھ لیں, تھوڑا انشاءاللہ بہت آسانی ہوگی. یہ مفعول بن جائے گا. جتنا میں بتا رہی ہوں اتنا بھی بہت سے لوگوں کے لیے بہت ہارڈ ہے جو میں بتا رہی ہوں, لیکن اپنے اوپر ترس نہیں کھانا. فائٹر بننا ہے. کیا بننا ہے؟ نہیں میم, ہم تو ہر اس چیز کے بالکل, ہاں, فائٹر بننا ہے آپ لوگوں نے. آپ نے ترس نہیں کھانا اپنے اوپر, کیا مصیبت ہے, روز کچھ نہ کچھ نیا بتا دیتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اپنے اوپر ترس کھانے والوں کو کچھ نہیں ملتا زندگی میں. فائٹر بننا ہے آپ نے, چیلنجز کو قبول کرنا ہے. زندگی میں ہر روز کوئی نہ کوئی چیلنج آتا ہے,
आप हार मान लेते हैं, फाइट करते हैं ना, तो यहाँ भी फाइट करनी है। मिनल कलिमाती, अब ये क्या बन रहा है, कौन सा मुरक्कब बन रहा है ये? मिनल कलिमाती है ना, मुरक्कब जारी, मुरक्कब जब जारी। भी इर्तिजा देखें आगे नौन ही आएगा या जमीर होगी, मिन हो भी हो सकता है ना, मिन हा भी हो सकता है, जमीर भी आ सकती है, वो भी मुरक्कब जारी बनेगा। अगर कोई नौन आ रहा है तो वो भी मुरक्कब जारी बनेगा। हरफ जर आ जाए सही, जैसे इशारा आ जाए और आगे अलिफ लाम वाला मुशारा ने ले आ जाए तो मुरक्कब इशारी बन जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही है। ये अलिफ लाम जो है ना, ये जोड़ देता है मिनल कलिमाती, तो ये मुरक्कब बन गया, अभी एक दूसरे के ऊपर सवार हो गए हैं। राकिब का मानी मैंने क्या बताया था, सवार होना है ना। राकिब कौन होता है? राइडर होता है ना। जी बिल्कुल। इसी से लफ्ज सवार। मुरक्कब बना, इसी से लफ्ज आपका रा का बा से मुरक्कब बना हुआ है। राइडर होता है बस पे सवारी करने वाला, साइकिल पे, ट्रेन पे, हवाई जहाज पे, जो भी है वो राकिब भी है, सवारी करने वाला। इसकी जमा आपने पढ़ी है मदीना बुक में, रुक्काबुन, ठीक है, जमा पढ़ी है आपने, रुक्काबुन। अब यहाँ पर क्या है, इसको क्यों मुरक्कब कहते हैं? इसलिए कि ये एक लफ्ज दूसरे के ऊपर सवार हुआ है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है, कनेक्शन है उसका। जब हम मुरक्कब इजाफी बोलते हैं किताबु होम, ठीक है, या किताबुल्लाही, तो वो एक लफ्ज जो है वो दूसरे के ऊपर क्या होता है, सवारी कर रहा होता है, उस वक्त मिल जाता है, कनेक्शन हो जाता है उसका, इसलिए फिर हम उसको मुरक्कब कहते हैं। अकेले अकेले कुछ नहीं हो सकता। देखें बादल आसमान पे, देखें कि एक टुकड़ा पड़ा हुआ है, कहीं बारिश होगी? होगी बारिश? मुझे बताएं। अल्लाह ताला ने खुद कुरान में फरमाया कि मैं बादलों को जमा करता हूँ, फिर उनसे बारिश बरसाता हूँ। अकेला बंदा भी कुछ नहीं होता। भी बंदा कहे कि नहीं मैं तो किसी से बात करूंगा तो मैं गुनाहगार हो जाऊंगा, मुझे तो अकेले रहना है, उसकी कोई नेकी कबूल ही नहीं होगी। अगर वो अकेले अपनी इबादत में लगा हुआ है तो दूसरों को साथ लेके चलना है, चाहे वो अच्छे हैं बुरे हैं, जैसा भी उनका मजाज है। यही तुम्हारे टेस्ट है ना। हमारा टेस्ट है क्या? दूसरों से अलग होकर बहुत आसानी से आप अपनी नेकियों में इजाफा कर सकते हैं, लेकिन वो नेकियां नहीं होंगी, उनका कोई अजर नहीं होगा। अजर ये है कि आप दूसरों के साथ रहें और सब्र करें, ठीक है। तो ये मुरक्कब इसी लफ्ज से बना हुआ है, बहरहाल समझ गए होंगे आप लोग। अच्छा, अल कलिमाती मुरक्कब बन गया। फिर अल कलिमातिल आतियती, अगर ये मिन अलग पड़ा होता से तो इसका कोई मीनिंग होता? नहीं होता, लेकिन कलिमात के साथ मिल गया, फिर कलिमातिल आतियती के साथ मिल गया, तो कितना बड़ा मीनिंग हो गया ना इसका। अब ये पूरा मुरक्कब जारी बन गया। कलिमातिल आतियती क्या बन रहा है? तौसीफ में बना। अब देखें ये गैर आकिल की जमा है तो वाहिद मुअन्नस उसकी सिफ्त आ रही है आगे। तो ये सारे रूल्स यहाँ पे आपको मैं देर तो लगाऊंगी थोड़ी, लेकिन आपके रिवाइज होंगे। फिर जब आप कुरान मजीद पे जाएंगे तो खुद ही तर्जुमा कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें मफ़ऊलन, मफ़ऊलन, इजअल कुल्लम मिनल कलिमातिल आतियती मफ़ऊलन, मफ़ऊल बनाने हैं, ठीक है, इनको मफ़ऊल बनाना है, सही है। अब शायद ये एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, लेकिन आप इसको मैं दोबारा करवा रही हूँ ताकि आपको ये दफा याद आ जाए हमने क्या किया था। बिही वद बित आखिरहा, आखिरहा, उसके आखिर के नीचे जब जेर आती है ना, एक होता है आखर, इन दोनों में फर्क करें। अरबी जबान सिर्फ जेर और जबान का फर्क से बनती है। आखर, अब ये आखिर का मीनिंग और है और आखिर का मीनिंग और है। आखिर से जो हम लोग बोलते हैं उर्दू में वो आखिरी बोलते हैं, आखिरी। आखिरी क्या होता है? लास्ट, लास्ट, यौमुल आखिर, आखिरत का दिन, लास्ट डे ऑफ द, है ना, लास्ट डे ऑफ दुनिया। तो यौमुल आखिर, आखिरी दिन। तो आखिरी का मतलब है लास्ट, और आखिर का मतलब क्या होता है? सेकंड, बाद में आने वाला। आखिर का मतलब होता है सेकंड, मुअख्खर, इससे मुअख्खर। तो वो जैसे जैसे फिर लफ्ज चेंज होता है मीनिंग, इसका मीनिंग होता है सेकंड, दूसरा। यौमुल आखिर का मतलब क्या होगा? सेकंड डे, बट यौमुल आखिर का मतलब होगा लास्ट डे। अच्छा, तो उस्ताद इसी से हम जो कहते हैं ना मुब्तदा, जो मुअख्खर बोलते हैं या है ना, मुअख्खर बोलते हैं उसी से, लेकिन वो फिर थोड़ा सा ये तो बेसिक वर्ड है ना आखिर, लेकिन उससे से फिर अखरा, युअख्खिरु, मुअख्खर, है ना, वो सारी चीजें बनती है, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन रूट वर्ड तो एक ही है ना, तो मीनिंग कुछ ना कुछ मिलता होता है। मीनिंग फिर क्या होता है? कुछ ना कुछ मिलता जुलता होता है। तो रा पे जबर देखें तो उसका मतलब होगा सेकंड, दूसरा, और जेर देखें तो आखिरी।
जमीन आसमान का फर्क है मीनिंग में। तो वद बित का मतलब है बांधना, जब्त हम तो कहते हैं ना गुस्सा जब्त कर लिया, वो भी यही होता है कि अपने आप को बांध लिया हमने, सबर कर लिया। यानी हमने सबर का लुग़वी मानी क्या होता है, किसी को पता है? लुग़वी मानी सबर का स्वाद बारह का मतलब क्या होता है? रो धो के बाद में सबर करके बैठ जाना, बांध लेना, रोक लेना। हाँ, इसका असल मीनिंग होता है रोक लेना। और रोक लेना कब रोक लेना? इंस्टेंट रोक लेना। हमें जब कोई खबर मिलती है कोई या हमें हमारे साथ कोई गुस्सा करता है तो हमारा इंस्टेंट रवैया क्या होता है उसके साथ, वो सबर है। हम चीखे दहाड़े और फिर उसके बाद फिर हमने कहा हम तो बड़े सबर करने वाले हैं, हम तो, ये सबर नहीं है। रो धो के फिर आपने सबर, एक चीज होती है जो आपके बर्दाश्त में नहीं है, ठीक है, लेकिन आप फिसल जाते हैं ना, लेकिन फौरन आपने क्या करना है, उसको रोक लेना अपने आप को वहीं पे, ये सबर है। वो इतना गुनाह आपका माफ है कि आपके इख्तियार में नहीं था वो, ठीक है, आप भड़के। लेकिन जो मोमिन होते हैं ना, मोमिनीन या जिन्हें कहना चाहिए, वो क्या करते हैं, वो फौरन शैतान को पहचान लेते हैं कि शैतान का वार हो गया। कुछ तो शैतान के आने से पहले ही पहचान लेते हैं, कुछ जो होते हैं शैतान के हमले के बाद पहचान लेते हैं, लेकिन पहचान लेते हैं फौरन रुक जाते हैं, वो होते हैं साबिर। और ऐसा बहुत मुश्किल होता है कि कोई हमें कुछ कहे और हम आराम से बैठे रहें, बहुत मुश्किल होता है। और इसी का बदला जन्नत है। जन्नत किस चीज का नाम है? जन्नत की कीमत क्या है? सब्र, सब्र, इंस्टेंट सब्र, इंस्टेंट रोक लेना। उसके बाद फिर आप, हाँ, और उसका नतीजा आप देखिएगा, आप करके देखिए, बहुत मुश्किल है लेकिन उसका नतीजा बहुत बड़ा, आपको दुनिया में ही जन्नत मिल जाएगी। आप करके देखें सब्र लोगों के साथ। वो आपके पास ना आए तो मुझे बताना, वो आपसे माफिया ना मांगे तो मुझे कहना, शर्मसार ना हुए तो मुझे कहना। जब आप उसी वक्त बोलते हैं ना तो फिर आप क्या होता है, वो बात में से निकल जाता है और आप बात के नीचे आ जाती है, आप जालिम बन जाती हैं, वो मजलूम बन जाता है, आप इतना कुछ कर देते हैं। सब्र की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जैसे आप ग्रामर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर सब्र नहीं है तो उसकी प्रैक्टिस शुरू करें और सब्र करने की आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें। अच्छा, ये होता है जब्त। जब्त उर्दू में बोलते हैं सब्र करना, और वद बित का मतलब है यहाँ पर आपने ये जो आखिर जो एराब जिसे कहते हैं ना, उसको आपने जब आप मफूल बनाएंगी तो इसका आप चेंज करेंगी ना जी। हाँ, क्या करेंगी, इसका आप क्या हो जाएगा? जबर हो जाएगा। हाँ, तो अब एक जुमला बना के देखिए आप। Use each of the following words in a sentence as maf'ulun bihi. क़राअतल क़ुरआन। क़राअतल क़ुरआन, तुमने कुरान पढ़ा। मैंने कुरान पढ़ा है, क्या होगा? क़राअतुल क़ुरआन। हाँ, ये तीन जो है ना ये बेसिक हैं। क़राअतु में अना ज़मीर फाइल है, ता पे जो पेश आ रही है उसका मतलब होता है तू, का मतलब अना होता है अरबी में, मैं। अरबी में तू हो तो उर्दू में मैं होता है। क़राअतु अल क़ुरआन, आपने यहाँ पे अगर अल क़ुरआन लिख दिया ना तो यहाँ पे दो फाइल बन जाएंगे जी। एक ये आपने फाइल बना दिया अना मरफू ज़मीर, और एक यहाँ पे कुरान भी बना, इसको आपने मफूल बनाना है तो इस पे ज़बर डालेंगे। तो क़राअतु मैंने पढ़ा कुरान, और अगर आगे थोड़ा सा और आप लगाना चाहती हैं तो अल यौमा भी लिख दें, लेकिन ये जुमला आपका कंप्लीट हो गया। अगर आप कहती हैं ना अब ये फिर मुताद्दी है जिसमें आप मफूलन बिही लगा रही है ना, मफूलन बी का आगे ना आपको लगाइए मफूल जिसे कहते हैं, जब वो लगाएंगे तो जुमला क्या बन जाएगा? मुताद्दी बन जाएगा। लेकिन अगर इसमें आप मफूल लगाती नहीं है और आप सिर्फ कहती हैं क़राअतु मैंने पढ़ा, अब वो दूसरा बंदा जो सुन रहा हो तो कहेगा तुम पागल हो, क्या कह रही हो, मैंने पढ़ा, है ना, क्या सवाल बनेगा। हाँ, तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी कोई बात ऐसी नहीं की, जहाँ पे मफूल की जरूरत थी वहां मफूल लगाया है, जहाँ पे मफूल की जरूरत थी वहां नहीं थी, अल्लाह ताला ने वहां मफूल नहीं लगाया। और मफूल को कैसे पहचानते हैं? जबर के साथ, कुरान में जबर के साथ पहचानते हैं। तो जब जबर आएगी, एक जबर या दो जबर लास्ट में, तो फिर वो मफूल होगा, और अगर एक पेश या दो पेश आएंगी तो वो फाइल बनेगा।
اب آپ نے اس کو بھی اگر اسی طرح دمے کے ساتھ لکھ دیا تو وہ 2 فائل ہو جائیں گے. اب اس کا بنائیے, کوئی اور بنائے القہوۃ کو. سب لوگ ایک ایک جملہ. ہاں فوزیہ بنائیے. القہوۃ کا شریبہ یوسف القہوۃ. شریبہ یوسف القہوۃ. ویری گڈ. شریبہ, شریبہ. اگر کسی لڑکی نے قہوہ پیا ہوگا تو پھر کیا کہیں گے؟ شریبت. شریبت. آگے کیا لگائیں گے؟ شریبت زینب القہوۃ. القہوۃ. زینب القہوۃ. اس کے پیش سے پتہ چل رہا ہے, اس لیے یہ اعراب امپورٹنٹ ہے. اعراب جو ہوتے ہیں کہ ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی چیز کی, کسی بندے کی پوزیشن کیا ہے جملے میں. فائل بن رہا ہے, ڈوور ہے یا مفعول ہے, اس کے اوپر فعل کا اثر تو نہیں پڑ رہا. ٹھیک ہے, اور فعل کرنے والا کون ہے. تو اگر آپ نے مفعول پہ جا کے دمہ لگا دیا تو وہ بیچارہ جو فاعل ہے جس کو مار پڑی ہے وہ تو الٹا پکڑا جائے گا نا, اگر اس پہ آپ نے زبر لگا دی جس کو مار پڑی ہے. تو یہ بہت ایکوریٹ آپ کو لگانے ہوتے ہیں. جس نے جو کام کیا اس پہ دمہ آنا چاہیے, اور جس پر اثر ہوا ہے فعل کا اس کے اوپر زبر ہی ہونی چاہیے, ورنہ ظالم مظلوم بن جائے گا, مظلوم ظالم بن جائے گا. اچھا آگے دیکھیے. الطفاء. نیکسٹ بنائیے. کوئی بھی آگے بنا لیں, دونوں بنانے ہیں مذکر مؤنث, ایک سٹیپ آگے جانا. میں بناؤں میں. جی بنائیے. اکلا یوسف التفاح. اچھا اکلت. یوسف کو چینج کر دینا, کوئی اور لے لیں. ابھی اکل تو کر لیں, میں نے کھایا, ضمیر لگا لیں. اکل تو التفاح. میں نے سیب کھایا. ابھی ٹھیک ہے, ابھی کسی لڑکی کا بنا لیں. پہلے بھی آپ نے اپنا بنایا, کوئی بات نہیں. دیکھیں تو میں سب آ جاتے ہیں. اگر کوئی لڑکا کھائے گا تو وہ بھی اکل تو ہی کہے گا. ٹھیک ہے, میں نے سیب کھایا. لڑکی ہوگی تب بھی وہ اکل تو ہی کہے گی, میں نے سیب کھایا. اس لیے جو جمع متکلم ہوتے ہیں نا گرامر, اس میں گردان میں اس کے صرف 2 ہی صیغے ہوتے ہیں. مذکر مؤنث سب کے لیے یوز ہو رہے ہوتے ہیں. انگلش میں بھی آپ دیکھیں آئی اور وی سب کے لیے یوز ہو رہا ہوتا ہے. مذکر مؤنث سب کے لیے بھی یوز ہو رہا ہوتا ہے, آئی یوز ہو رہا ہوتا ہے. تو انگلش میں بھی ایسے, عربی میں بھی ایسے ہی. تو متکلم کے لیے صرف 2 ضمیریں ہوتی ہیں, انا اور نحن. انا اور نحن. تو اس میں آپ نے پھر کیا. اب لڑکے کے ساتھ کوئی بنا لیں, چلیں. اکلتا. ہاں اکلتا, تم نے کھایا. اکلتا التفاح. تم نے سیب کھایا. التفاح. 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 بس اس پہ زبر لانی ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا اگر آپ اس پہ پیش لے آئیں گی تو سیب نے کھایا ہو جائے گا. فرض کرو آپ کہتی ہیں کہ میں لگاتی ہوں اکلا, کھانے کے لیے کیا ہوگا, اکلا ہوگا نا. اب یہ ماضی ہے, ٹھیک ہے. اس میں ہوا ضمیر بھی ہو سکتی ہے, آگے کوئی نام بھی لا سکتے ہیں. اکلا اور اکلت میں دونوں آ سکتے ہیں, آگے نام بھی آ سکتا ہے اور ضمیر بھی فاعل بن سکتا ہے. تو اکلا یہاں پر آپ مریم نہیں لگا سکتے. کیا لگائیں گے؟ حامد لگائیں گے, مرد کا نام لگائیں گے. زید لگائیں, کچھ بھی لگائیں. حامدن. اچھا التفاح. اس پہ تو الف لام نہیں لا سکتی نا میں, ٹھیک ہے. اس پہ میں الف لام نہیں لا سکتی کیونکہ یہ پہلی ڈیفینیٹ ناؤن ہے. تو اس کو میں نے ایسے ہی رکھا ہے تنوین کے ساتھ, اور التفاح پہ میں نے کیا کیا ہے, الف لام لایا. التفاح. اب اس کا مطلب کیا ہوگا؟ حامد نے سیب کھایا. ہاں التفاح. حامد نے. اب یہ کھانے والا یہ ہے, ٹھیک ہے نا, اور جس کو کھایا گیا ہے وہ یہ ہے. اگر آپ اس پہ دمہ لگا دیں گی اور اس پہ زبر لگا دیں گی, ٹھیک ہے, 2 زبر لگائیں گی تو الف بھی ایڈ ہوگا. تو اب کیا ہوگا, یہاں پہ پیش لگا دیں, سیب نے حامد کو کھایا. بالکل الٹ ہو جائے گا نا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ اعراب صحیح لگانا ہے آپ نے. جس نے کھایا جو فاعل ہے. یہ ریپیٹ کریں. اچھا یہ دیکھیں, جب آپ یہاں پہ, یہ حامد فاعل ہے نا, کھانے والا ہے نا, جی اس پہ پیش آنی چاہیے نا. ہاں. تو جب آپ اس پہ زبر لگا دیتی ہیں تو یہ کیا بن جاتا ہے, یہ مفعول بن جاتا ہے. مفعول. یعنی فعل کا کھانے کا اثر کس پہ پڑ رہا ہے, اس پہ پڑ رہا ہے, اس کو کھایا گیا. اچھا ٹھیک ہے. اب اس کا اور التفاح پہ پیش لگا دیتی ہیں تو یہ فاعل بن جائے گا کیونکہ اس کے اوپر دمہ آ گیا, تو یہ فاعل بن جائے گا نا.
جی हाँ, बेशक इसकी जगह इधर है, इसकी इधर है, अपनी जगह से फाइल को यहाँ आना चाहिए था लेकिन वो आगे चला गया। जगह से कुछ नहीं होता, जगह से कुछ भी नहीं होता, होता किससे? एराब से होता है। अगर आपने एराब गलत डाल दिया तो अभी यहाँ पर खाने वाला सेब है और जिसको खाया गया वो हामिद है, तो सेब ने तो हामिद को नहीं खाया ना, सेब ने हामिद को खाया, ये तर्जुमा हो जाता है ना। हामिद का तर्जुमा को में आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ मफूल है ये, ठीक है। और इसका तर्जुमा ने में होगा कि नहीं होगा? जब दमा तो होता है तो उसका तर्जुमा ने में होता है कि नहीं होता, मुझे बताइए। जी 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 हाँ, और जब ये बात याद रखनी है ना आपने, जब को में होती है। हाँ, को में होता है। तो अब इसका क्या हो जाएगा? इसमें ने लगाइए, सेब ने खाया हामिद को, है ना। या ऐसे भी कर सकती हैं, खाया हामिद को सेब ने, इस तरह भी कर सकती है ना। तो मैम इसका फिर सही हो जाएगा अकला अतुफाहु हामिदन, इस तरह। हाँ, तो अतुफाहु पे तो मैंने तुफाहु लगा दिया है ना, वो तो मैंने लगाया है, तभी तो गलत हो रहा है। जो सेब है ना उसके ऊपर जबर लगानी है, और जो हामिद है जो खाने वाला है उसमें पेश लगानी है। असल ये बात, खाने वाला कौन है मुझे बताए? हाँ, खाने वाला कौन है? हामिद है ना, हामिद ने है ना। और तुफा कौन है? जिसको खाया गया है, मफूल है। तो मफूल पे क्या हरकत आती है? मफूल पे क्या हरकत आती है? जबर आती है, तो जबर लगाएंगे। अब ये सही हो गया, खाया हामिद ने सेब को। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, वो किस जगह पे पड़ा हुआ है जुमले में उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंट है उसकी पोजीशन, उसका इराब, उस पे कौन सी हरकत आपने दी है, वो इंपॉर्टेंट है। तो सीक्वेंस तो यही होता है, फेल होता है, देन फाइल होता है, देन मफूल होता है, और इसके चारों सीक्वेंस मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। तीन जो है, तीन हालतों में सीक्वेंस बरकरार रहता है, फेल, फाइल और मफूल का। चौथी हालत में जो है वो आपको जमीर पहले लाके फेल के साथ अटैच करनी पड़ती है, फिर वो मफूल की जमीर पहले आ जाती है, फाइल बाद में चला जाता है, सीक्वेंस टूट जाता है। तो इसको देखिएगा, आपकी कॉपी में नोट्स बने हुए। अच्छा जनाब, इसमें आप देखिए, अभी हम ये कर लेंगे आप लोग, मेरे ख्याल में ये बहुत ही आसान है। गसला आप बनाइए जरा, ये अभी माइक पे थी सिस्टर शाजिया मैं बताऊं? हुमैरा आप बना रही हैं जुमला? बनाइए अल कमीज का। मुअन्नस में बनाइए, मुअन्नस में, कपड़े वही धोती हैं, मुअन्नस ही धोती हैं। जी जी लेकिन कमीज पर मैं वो अलबाब पे बनाती थी, मैं अलबाब पे बनाऊं? बनाओ कमीज का फेल फतह खालिदुन अलबाब, या फतह आगे क्या है? खालिदुन, वेरी गुड। खालिदुन को आपने क्या बनाया? डूअर बनाया ना, फाइल बनाया। फतह खालिदुन अलबाबा पे जबर आएगी और एक ही जबर आ रही है, ठीक है जी। जो फाइल और मफूल होते हैं ना वो डेफिनेट नाउन ही बनाया करे जी। जो फाइल और मफूल बनाते हैं वो डेफिनेट नाउन ही बनाया करे, सही है। मैम मैं कमीज का बनाऊंगी। हाँ कमीज का बनाइए, बना दूं मैं? अच्छा, गसलत, ये मोनस रहेगा तो फिर गसलत बिंतु, गसलतिल बिंतुल कमीसा, बिंतुल कमीसा, ठीक है, सही है, बिंतुल कमीसा, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। आपने दोनों बना दिए ना। यहाँ पर आपने क्या लगाया था? गसलत, यहाँ पर क्या लगाया था? बिंतु लगाया था, बिंतु लगाया था, जोड़ने के लिए मैंने तापे जेर लगा दी, अल बिंतु लगाया था, अल बिंतु। जी जी। गसलत तिल आपने कहा ना, गसलत अल बिंतु अल कमीसा, है ना। फिर उसको मिलाएंगे तो ये बिन के नीचे भी जेर आ जाएगी, ठीक है। सही हुआ। हाँ, यहाँ पे आपने बिंतु लगाया था, ठीक है, तो बिंतुल कमीसा होगा, पेश के साथ ही मिला देंगे। जब तक यहाँ सुकून ना आए ना, आपने जेर नहीं देना। अगर हरकत आ रही है पेश या जबर तो आपने उसी के साथ मिलाना है। अगर यहाँ पे सुकून है ना, फर्ज करें, तो फिर आपने जेर के साथ मिलाना है। यहाँ भी सुकून है, यहाँ भी सुकून है, फिर आपने। तो ये बातें छोटी छोटी समझनी है कि कैसे। तो ये आप कलम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है।
آپ لکھیں گے تب ہوگا. اچھا جناب, جن کو اردو لکھنے آتی ہے ان کے لیے تو عربی کوئی مشکل نہیں, صحیح ہے, وہ اپنا فائدہ اٹھائیں, اور جن کو نہیں آتی پھر وہ زبان زیادہ یوز کریں اپنی, بار بار پڑھیں چیزوں کو تاکہ زبان پہ جاری ہو جائے. دیکھیں قرآن ہم پڑھتے ہیں, ہم لکھتے تو نہیں ہے نا, لکھنا تو بعد میں آتا ہے, پہلے ہمیں صحیح پڑھنا آنا چاہیے. تو ریڈنگ از دا فرسٹ, لیکن وہ پھر نور علی نور کیسے بنتا ہے جب ہم لکھتے ہیں. اچھا, اب درسہ کا کوئی بنا دے, میں ٹرائی کر دوں. کریے. میں نے ایک بنایا تھا اس کا. جی, درسہ مطلب سبق نا. تو کتب کتب الولد, ولدو, ٹھیک ہے. کتب الولد الدرسہ. ہاں, دد درسہ, ٹھیک نا, الولد الدرسہ, تو اس کے اوپر بھی الف لام آ رہی ہے, درسہ پہ بھی اور ولد پہ بھی آ رہی ہے. لیکن اگر کوئی ولد کی جگہ نام لگائیں گے نا تو پھر اس کے اوپر الف لام نہیں ڈالیں گے. اچھا, ٹھیک ہے. ہاں, پھر ہوگا کتب حامد ہاں, درسہ. کتبہ لکھا, حامد نے, اور اگر لڑکی ہے کوئی تو پھر کیسے بنائیں گے, کتبت, کتبت زینب مریم الدرسہ. اب مریم بھی نیم ہے, اس کے اوپر بھی آپ الف لام نہیں لگا سکتے, اور دو پیش بھی نہیں لگا سکتے, مریم زینبو لگانا ہے. ٹھیک ہے, چلیں یہ بات ہو گئی. ابھی آ گئے ہم اپنے امپورٹنٹ کام کی طرف, اس کو آپ نے بہت دھیان سے سننا ہے. اچھا فوزیہ آپ آ کے پڑھے. جی میم. تعمل مثلین الاتیین. Examine the following examples. ایگزامن, پونڈر ہوتا ہے نا, پونڈر. تعمل یہ بھی امر ہے, ٹھیک ہے, یہ امر ہے, اس کے اندر ہی انتا ضمیر ہے, فائل بن رہی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ مثالانی نہیں آ رہا, مثالینی آ رہا ہے, یہ منصوب آ رہا ہے کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے. یہ مفعول بن رہا ہے, کس کا مفعول بن رہا ہے, تعمل کا. پڑھیے, غور و فکر کیجئے دو مثالوں پر. دو مثالیں آ رہی ہیں نا, یہ دو مثالیں, ایک اور یہ دو مثالوں پہ, بلکہ یہ ایک مثال ہے اور یہ دوسری مثال ہے, اور پھر یہ ایک مثال ہے اور پھر دوسری مثال ہے. تو دو مثالوں پر الاتیین, اس کی صفت بھی کیا آ رہی ہے, نسبی حالت میں آ رہی ہے. تو آپ نے مثنیٰ پڑھ لیا ہے, تو مثنیٰ کی نسبی جری حالت بھی جو ہے وہ آپ کو مدینہ بک میں نے اس میں لسان القرآن میں پڑھائی تھی. مثال ایک مثال ہوتی ہے, دو مثالیں کیا ہوتی ہیں, مثال کا مثنیٰ کیا بنے گا, مثالانی, اور ان کی نسبی حالت جری حالت کیا بنے گی, مثالینی, کتابانی, کتابینی. ٹھیک ہے, تو یہ اسی مثالانی سے مثالینی بنا ہوا ہے, جیسے کتابانی سے کتابینی بنتا ہے. تو اس کی صفت بھی آگے ویسی آ رہی ہے, آیتن, آیتانی, آیتینی. اچھا جناب, اب یہاں مفعول بنانا تھا, اس لیے اس کو نسبی حالت میں. اگر فاعل بنانا ہوتا تو مثالانی ہی لاتے, لیکن مفعول بنانا ہے اس کو. اچھا, یہ بات تو ختم ہو گئی نا. اچھا آگے چلتے ہیں, یہاں پہ پڑھیے. الطلاب ذهبوا الى الملعب. اب یہ کون سا جملہ ہے, یہ ہے اسمیہ جملہ. جملہ اسمیہ ہے کیونکہ اس میں یہ اسم سے شروع ہے, یہ مبتدا ہے. آگے ذهبوا خبر ہے اور الى الملعب متعلق کے خبر ہے. یہ پورا جملہ خبر ہے, پورے کو کرتے ہیں, پورے جملے کو خبر کرنی ہے, کیونکہ یہ فعل ہے, اس کے اندر فاعل بھی ہے نا, واو فاعل ہے, اس کے اندر ڈوئر ہے. یہ جو واو ہے نا یہ فاعل ہے, جمع کو بتا رہا ہے یہ واو. ذهبوا, they went, ٹھیک ہے, کہاں گئے, towards ملعبی پلے گراؤنڈ, ہے نا, they went to the playground. ٹھیک ہے, اب یہ پورا جملہ ہے, اس میں فعل بھی ہے, فاعل بھی ہے, اور یہ آپ کا متعلق فعل ہے. اس کو آپ مفعول نہیں کہیں گی, جی, اس کو آپ متعلق فعل کہیں گے. اگر یہ ہوتا نا ملعبہ تو پھر آپ اس کو مفعول کہہ سکتے تھے, لیکن یہ الا کی وجہ سے مجرور ہو گیا, اب آپ اس کو مفعول نہیں کہہ سکتے, کیونکہ یہ جو ذہب فعل ہوتا ہے یہ تو لازم فعل ہوتا ہے, اس کو مفعول کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. جی جی, یہ لازم فعل ہے, اس کا یہ لازم کا مطلب بتایا تھا کہ یہ فعل اپنے فاعل سے ہی چمٹا ہوا ہے, آگے مفعول کی ضرورت نہیں ہے اس کو. ٹھیک ہے, تو مفعول آئے ہی نہیں.
अगर मफूल की जरूरत होगी तो लाजम मफूल आएगा, फिर मीनिंग ही पूरा नहीं होगा अगर हम मफूल नहीं लगाएंगे तो अब ये आपका फेल, फाइल और मुताल्लिक़ फेल मिल के, सब कुछ मिल के, तो ये इसकी मुब्तदा की खबर बन गई। ठीक है ना। अब निचले वाले जुमले पे आ जाते हैं। अब फेलिया जुमला है, ये जुमला फेलिया बन रहा है। इलल मल अभी ज़हबा ये पहला सीगा है और उसके साथ इस्म जाहिर है अत्तुलाबु, और इलल मलबी ये फिर मुतल्लिक़ फेल होगा, मुतल्लिक़ फेल बनेगा। ये सिर्फ जुमला फेलिया है, ये पूरा जुमला फेलिया है, ये पूरा जुमला फेलिया है। मफूल नहीं है तो ये फेल लाजिम होगा। हाँ, ये ज़हबा है, ये फेल लाजिम। कुछ जो फेल लाजिम होते हैं ना वो लाजिम ही होते हैं, ठीक है, उनको मफूल की जरूरत नहीं होती कभी भी। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आपका ये मुब्तदा बन रहा था, यहाँ पे ये फाइल बन रहा है ना। अच्छा, यहाँ पे ये मुब्तदा था, ये जुमला इसमिया था। जब आपने इसको फेलिया बनाया तो फेलिया में क्या है कि आप इसको एज अ फाइल यूज करेंगे, यहाँ पे लाएंगे, एज अ फाइल आ गया तो ये फेल, ये जो फेल है ना इसको ज़हाबू नहीं ला सकते। फिर जब इसको आप इसम जाहिर फाइल बनाएंगे ना जी, तो फिर आप फेल ज़हाबू जमा नहीं ला सकते, फिर फेल आपका क्या आएगा, वाहिद मुज़क्कर आएगा, वाहिद मुज़क्कर। अगर आप यहाँ पे ज़हाबू लगाएंगे तो क्या नुकसान होगा, अगर फर्ज करें ज़हाबा की बजाय ज़हाबू लगा देते हैं, यही वाला उठा के, फिर अत्तुलाबु यहाँ पे नहीं आना चाहिए ना। हाँ, फिर तुलाबू नहीं आना चाहिए। ठीक है, दो फाइल नहीं हो सकते ना, दो फाइल नहीं हो सकते। तो इसलिए जब इसम जाहिर फाइल ले आते हैं तो फिर फेल को जो है वाहिद लाते हैं हमेशा। ठीक है, अगर एक बंदा होगा तालिब, तालिबू होगा तब भी ज़हाबा आएगा, तालिबानी होगा तब भी ज़हाबा आएगा, इसम जाहिर फाइल जब आ रहा है तो अत्तुलाबू होगा तब भी ज़हाबा आएगा। तो अगर इस जुमले से देखें, ये वाला जुमला जुमला फेलिया है, इससे अगर आप जुमला इस्मिया बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, जुमला फेलिया से जुमला इस्मिया बनाना है आपने तो कैसे बनाएंगे, इसका फाइल निकाल के बाहर ले जाएंगे, अत्तुलाबू। अब आगे फेल क्या लाएंगे आप लोग, इसी के हिसाब से लाएंगे, ये जो है वो जमा इसी के, हाँ, अब आप ज़हाबा नहीं ला सकते, अत्तुलाबू के बाद आप ज़हाबा इलल मलअबी नहीं ला सकते, अत्तुलाबू ज़हाबा इलल मलअबी नहीं ला सकते, क्योंकि इसकी ज़मीर जो है ना हुआ है और वो पीछे मैच नहीं हो रही तुलाब के साथ, ये वजह है, ये रीजन है। आप इसको ज़हाबू लाएंगे ताकि उसकी जो हम ज़मीर है वो हम के बराबर होती है ना, वो हम ज़मीर जो है वो तुलाब की तरफ जाए। और अगर मैम इसम जाहिर फाइल ना हो तो फिर यहाँ उसमें से ज़मीर निकाल के फिर शुरू में लाएंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे बताया गया कि ये जुमला इस्मिया है, इसी को फेलिया में चेंज करना हो तो आपने क्या करना है, तुलाबू को आप फाइल बनाएंगे और पीछे आप फेल जो है ज़हाबू नहीं ला सकते, अगर ज़हाबू लाएंगे तो फिर दो फाइल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने ज़हाबा लाना है ताकि क्या हो, वो जुमला सही रहे। ठीक है, जब भी इसम जाहिर फाइल लाएंगे फेल आपने वाहिद लाना है, और जब भी आप इसमें आप इसम जाहिर फाइल, इसमें इस जुमले के अंदर इसम जाहिर फाइल नहीं है ना, तो फिर फेल किसके मुताबिक लाएंगे, पीछे उसके मुताबिक लाएंगे, मुब्तदा के मुताबिक लाएंगे। जुमला फेलिया बनाएंगे तो फेल वाहिद आएगा। ठीक है, जब ये भी जुमला फेलिया है, ठीक है, ये भी फेल से शुरू हो रहा है, यानी अंदर जो जुमला आ रहा है ब्रैकेट में ये जुमला फेलिया है, लेकिन इसमें अगर आप ज़हाबा लगा देंगे तो ये मैच नहीं होगा इसके साथ, मुब्तदा के साथ, इसलिए यहाँ पे ज़हाबू लाते हैं और यहाँ पे ज़हाबा लाते हैं। अगर यहाँ पे ज़हाबू लेंगे तो फिर ये भी फाइल हो जाएगा, इसमें भी और इसमें भी फाइल हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल काम है, अब इसको भी देख लेते हैं, शायद आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब यहाँ पे देखें, ये जुमला इस्मिया है और इसमें अब तालिबातु मुब्तदा है, ज़हबना ज़मीर लाएंगे, इसमें कौन सी ज़मीर है जो पीछे जा रही है, ज़हबना में उन्ना की ज़मीर है, मैच हो रही है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, प्लूरल है। अगर यहाँ पे आप ज़हाबा लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, फिर हुआ ज़मीर इधर नहीं जाएगी, या आप इसमें ज़हाबत लगा देंगे फर्ज करें
तो वो मैच नहीं होगी हिया इधर, तो आपने ज़हबना ही लगानी है। यहाँ पे आपका फाइल पहले आ रहा है, ठीक है, फाइल पहले आ गया, हमने निकाल लिया, बाहर आ गया। यहाँ पर आपका फाइल बाद में आ रहा है। जब फाइल बाद में आएगा तो इसमें आपने फिर उसके मुताबिक लगाना है, वरना अगर आपने यहाँ ज़हबना लगा दिया तो दो फाइल हो जाएंगे। तो यहाँ आपने वाइट फेल लगाना है जब आपका फाइल बाद में आएगा। अच्छा, फाइल जो होता है ना, क्या हम इसको फाइल कह सकते हैं? इसको हम फाइल कह सकते हैं? इसको नहीं कह सकते क्योंकि फेल से पहले फाइल नहीं आ सकता। हाँ, ये बात नोट करें। उसको फिर हम क्या कहेंगे अगर फेल से पहले फाइल नहीं आ सकता? तो मुब्तदा, उसको मुब्तदा कहेंगे, और वो जुमला इस्मिया बनेगा। यहाँ पे अभी हम एक्सरसाइज करेंगे, आपको बेटर समझ में आएगा। तो यहाँ पे आपने मैच करनी होती है ज़मीरें। जब आपका इसम जाहिर फाइल आएगा ना, चाहे वाहिद आए, मुसन्ना आए, जमा आए, तो आपने फेल क्या लाना है? वाहिद लाना है, वाहिद लाना है। लेकिन अगर वो मोन्नस है तो मोन्नस फेल लाएंगे वाहिद, और अगर वो मुजक्कर है तो फिर मुजक्कर फेल वाहिद लाएंगे, जैसे यहाँ पे आया अतुलाबु ज़हबा। ये बात समझ आ गई? तो बस इतना सा करना है। और फाइल, दूसरी बात याद रखनी है, फाइल कभी बाहर नहीं आता। फाइल बाहर होगा तो वो मुब्तदा कहलाएगा। फाइल कभी बाहर नहीं आ सकता। फाइल कभी फेल से पहले नहीं आ सकता, ठीक है, पहले कभी नहीं आ सकता। फिर वो जुमला इस्मिया बन जाता है, मुब्तदा कहलाएगा। और फिर जब बाहर आ जाएगा तो फिर फेल उसके मुताबिक आएगा। जब फाइल पहले आता है तो मुब्तदा बन जाता है, तो फिर जो फेल होता है, जो फेल आगे ला रहे हैं, उसके मुताबिक लाना पड़ता है। जमा है तो जमा, वाहिद है तो वाहिद। अच्छा, अभी हम आते हैं अगली चीज पे और आपको बेहतरीन समझ आ जाएगा। अभी कद्दिम का मतलब क्या होता है? कद्दिम अल-फेला। अच्छा, फिल जुमल आतियती कमा हुआ मुवद्दहुन फिल मिसाली, ठीक है। कद्दिम, चेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग नॉमिनल सेंटेंस। नॉमिनल सेंटेंस क्या होता है? नॉमिनल सेंटेंस और वर्बल सेंटेंस दो होते हैं ना। इसमिया जुमला और फेलिया जुमला। नाउन से नॉमिनल होता है नॉमिनल सेंटेंस टू वर्बल सेंटेंसेस, ठीक है, एज शोन इन द एग्जाम्पल। तो अभी आपने एग्जाम्पल दे दिया, औलादु शरीबु अलकावता। ये आपका यहाँ पे मुब्तदा है, फाइल नहीं है, ये मुब्तदा है, क्योंकि फाइल पहले नहीं आ सकता फेल से, तो ये मुब्तदा है, इसको आप मुब्तदा कहेंगे। अब जब मुब्तदा आएगा पहले, तो मुब्तदा के बाद जो खबर आएगी, तो खबर में जुमला फेलिया बन के खबर आ रही है ना, तो उसका जो आप फाइल लाएंगे, जो उसमें जमीर लाएंगे, ज़ाहिर जमीर लाएंगे ना, अभी जाहिर फाइल तो नहीं आ सकता अभी, तो वो जो जमीर आएगी वो इसके मुताबिक आएगी, मुब्तदा के हिसाब से। हाँ, तो यहाँ पर मुब्तदा के हिसाब से आएगी। शरीबू, आप शरीबा नहीं लगा सकते यहाँ पे, क्योंकि उसमें हुआ जमीर होगी तो यहाँ पे मैच नहीं होगी। अच्छा, अब क्या है? अब आपका फाइल जो है वो अपनी जगह पे आ रहा है, इसम जाहिर फाइल आ रहा है, तो आप फिर क्या लाएंगे? वाहिद लाएंगे। वाहिद लाएंगे। मुजक्कर है, मुजक्कर के साथ मुजक्कर लाएंगे, अगर यहाँ मोनस होगा तो मोनस के साथ शरीबत लाएंगे। और यहाँ पे डजंट मैटर कि यहाँ पे आपका वलदुन आ रहा है, वलदानी आ रहा है, या औलाद आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने फेल वाहिद लाना है। आप शरीबा शरीबू नहीं ला सकते यहाँ पे। अगर आपने यहाँ पे शरीबू बना दिया या शरीबा बना दिया, तो इसमें फाइल इसके अंदर भी हो जाएगा और फाइल आगे भी आ जाएगा, दो फाइल हो जाएंगे। तो पहले सीगे में इसलिए हिडन रखा गया फाइल को कि अगर आगे आ रहा है तो उसको यूज ही ना करें। इसमें हुआ होता है कि नहीं होता? हुआ होता है ना फाइल। आप लोग क्यों नहीं कहते कि इसमें भी तो हुआ फाइल है, तो फिर आगे जिसमें भी दो फाइल हो रहे हैं, क्यों नहीं ये सवाल करते? क्योंकि वो हिडन है ना, इसलिए कि उसको हिडन रखा गया है। उसको हम जब हमें जरूरत होगी तब बाहर निकालेंगे, ठीक है। जब हमारा ये वाला फाइल नहीं आएगा ना, तो फिर हम उसको निकाल लेंगे, ठीक है। और जब हमारे पास ये वाला फाइल होगा तो उसको छुपा देंगे। अगर ये फर्ज करो औलादू ना होता, यहाँ पे फाइल ना होता, तो फिर हम शरीबा अलकावता का क्या मतलब लेते? हुआ शरीबा अलकावता, क्योंकि फाइल तो मस्ट चाहिए ना, फाइल तो मस्ट होना चाहिए, तो फाइल आप बाहर निकाल लेते।
तो ये फर्क है. इसको ये दो सीगों में आपको हिकमत समझ आई कि क्या हिकमत हिडन रखने की. यही हिकमत है कि उसको वक्त जरूरत निकाल लो और वरना हाइड कर लो. और बाकियों में जितने भी आगे सीखे हैं, शरीबा, शरीबू, है ना, शरीबता, शरीबना, शरीबता, उनमें सब में फाइल साथ लगाया हुआ है. ठीक है, तो आप दो फाइल फिर नहीं ला सकते वहां पर, क्योंकि फाइल ऑलरेडी लगा हुआ है फेल के साथ. फिर आप सिर्फ मफूल लाएंगे. तो ये प्रैक्टिस से आपको समझ आएगी, ऐसे नहीं आएगी बोलने से. अब आप करिए इसको. नंबर 2 को फौजिया पहला सेंटेंस आप ही करें, फिर मैं औरों को बुलाती हूँ. अन्नासु सामेउल अज़ाना, लोगों ने अजान सुनी. तो ये हो जाएगा सामी अन्नासुल अज़ाना. अच्छा, अब हम क्या करेंगे. अन्नासु, तो ये जुमला इस्मिया है ना, तो जुमला इस्मिया में फेल जो आएगा उसके बाद वो उसके मुताबिक आएगा, मुब्तदा के मुताबिक. ठीक है, आप समिया नहीं लगा सकते, फिर उसकी ज़मीर से मैच नहीं करेगी. समीउ लगाएंगे. ये जमा है तो ये भी जमा है. ये मुब्तदा था और ये पूरी खबर बन रही है. इसके अंदर फेल भी है, फाइल भी है, वो और आजाना मफूल भी है. तो जुमला फेलिया बन के इसकी खबर बन गई. अब आपने इसको क्या करना है, अभी आपने क्या करना है, इसको ये जुमला इस्मिया था, आपने इसको जुमला फेलिया में चेंज करना है. क्या होगा, समी, क्या लगाऊं, समिया. हाँ, अब क्या आएगा, कोई और नहीं बोले प्लीज. एक मैं आपको बारी देती हूँ ना. अभी पता है एकदम बाहर आ रहा है आपका, लेकिन मैं क्या करूँ. सामी अन्नासु, आगे क्या आएगा, अल अज़ाना. अल अज़ाना. अल अज़ाना पे जबर लाइए, क्योंकि ये हमने मफूल बनाया. मैम यहाँ एक चीज और मुझे ये समझ आई है इसमें, जो इस्मिया जुमला है उसमें आपके सीगे बाकी भी आ सकते हैं, लेकिन जब इस्मिया से आप फेलिया करते हैं तो पहला या चौथा सीगा लगाते हैं. बस आगे फाइल कुछ भी हो. ठीक है, तो उसमें आपका फाइल कुछ भी हो, आपने फेल जो है उसको वाहिद ही लाना है. जब इसम जाहिर फाइल होगा, जी, अगर इसम जाहिर फाइल नहीं होगा तो हम ये भी कह सकते हैं ना, सामीउ अल आजाना, है ना, सामीउ भी कह सकते हैं ना, अल आजाना, उन्होंने अजान को सुना. जब आपका इसम जाहिर फाइल आएगा ना, तब सिर्फ आप दो सीगे ला सकते हैं, समिया और सामियात. यहाँ पे मुन्नस होगा तो समियात लगा देंगे. फर्ज करो इसी को आपने जुमला फेलिया बनाना है, तो आप क्या करेंगे, नहीं, जुमला फेलिया बनाना है तो क्या करेंगे, इसको फर्ज करो आप इसम जाहिर फाइल नहीं आ रहा और आपने जुमला फेलिया बनाना है. जुमला फेलिया बनाना है तो इसका क्या मतलब होगा, समियल अजाना. जुमला फेलिया तो बन गया आपका. जी, उसने अजान सुनी. उसने अजान की फाइल किधर है, हुआ. अब हम ये वाला हिडन वाला यूज करेंगे ना. जी. इसी तरह समियत अल अजाना होगा, जुमला फेलिया तो वो भी बन जाएगा. ठीक है, और उसमें क्या होगा, शी हर्ड अल अजान, ये आएगी जमीर. ठीक है, तो इन दो सीगों में आपका इसम जाहिर फाइल आएगा तो आपका सीगा वाहिद का ही आएगा. और जो है अगर इसम जाहिर फाइल नहीं है तो फिर आप समीउ अल अज़ाना भी कह सकते हैं, समीआ अल अज़ाना, समीअत भी, समेतु भी कह सकते हैं, मैंने अजान को सुना. फिर आप कुछ भी लगा सकते हैं. अगर इसम जाहिर फाइल नहीं है तो फिर आप कोई भी सीगा ला सकते हैं. लेकिन जब इसम जाहिर फाइल आएगा तो आपने सिर्फ पहला और चौथा सीगा यूज करना है. अच्छा, नेक्स्ट आप आ जाएं. अभी कौन है, कुदसिया नहीं आई अभी तक, माइक पे आ जाए, इसको बनाइए. कुदसिया हैं भी क्लास में कि चली गई हैं. अच्छा, कौसर आप बनाइए. जी अतुल्लाबु कतबुल अजवती, अजवी बत्ता. तो कतबल तुल्लाबु अजवी बत्ता, अल अजवी बत्ता. ठीक है ना. तो जब आप क्या करेंगी, इसको आप तुला, अभी तो ये जुमला इस्मिया है ना, जब इसको फेलिया में चेंज करेंगी तो अतुलाब को आप फाइल बनाएंगी ना. जी, तो फाइल इसमें जाहिर है इसलिए फेल वाहिद आएगा. फेल क्या आएगा,
वाहिद आएगा, वाहिद हो जाएगा। जब भी इसम ज़ाहिर फाइल आएगा आपका फेल क्या आ जाएगा, कतबा, कतबत, ठीक है, ये आ जाएगा। तो आपने कर लिया। चलिए आगे, अल अजविबता। अल अजविबता क्या होता है? जवाब की जमा, जमा है, जवाब की जमा है। और सवाल की जमा क्या होती है? अल अस्इलता, है ना, अस्इलता। तो लाभ का, अब ये जुमला क्या था? इस्मिया था, ये मुब्तदा था, कतबू उसके मुताबिक आया है क्योंकि इसकी ज़मीर को बीच में जोड़ना है दोनों को। तो अगर यहाँ पे हम कतबा लगाते तो हमारी हुआ ज़मीर इसके साथ जुड़ती नहीं थी, दोनों को कनेक्ट ना कर पाती। मैंने आपको बताया ये आपका क्या होता है, ये इंजन होते हैं और ये डिब्बे होते हैं पीछे। इंजन और डिब्बों को जोड़ने के लिए बीच में एक हुक की जरूरत होती है, और वो हुक वो ज़मीर होती है, तो वो मुताबिक होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ पे आप कतबा लिख देंगे तो हुआ ज़मीर इसके मुताबिक नहीं होगी, वो कनेक्शन नहीं बनेगा। मुब्तदा अलग पड़ा रहेगा, इंजन अलग पड़ा रहेगा, डब्बे अलग पड़े रहेंगे। तो कनेक्शन करना है तो फिर आपको ये फेल जो है उसके मुताबिक लाना पड़ेगा। यहाँ पर जब इसम ज़ाहिर फाइल आ जाएगा तो फिर आपने यहाँ पे उसके मुताबिक नहीं लाना। फर्ज करो अगर आप कतबू लाते हैं तो फिर कतबू के अंदर भी फाइल है और ये भी फाइल है, दो फाइल हो जाएंगे। ये इसमें सारी हिकमत है, इसलिए हम इसम ज़ाहिर फाइल लाते हैं कि साथ फेल जो लाते हैं वाहिद लाते हैं, ठीक है, ताकि इसकी ज़मीर को हम हिडन कर दें, उसको फाइल ना बनाएं। बाकी सीओ में हम हिडन नहीं कर सकते, कतबू में हम हिडन नहीं कर सकते ज़मीर को, वो तो नजर आ रही है आपको। यहाँ पे आप हाइड कर सकते हैं, बवक्ते जरूरत निकाल भी सकते हैं। तो जब आपका इसम ज़ाहिर फाइल होगा तो आप हाइड कर दें। अब ये वाला फाइल काम नहीं करेगा, सिर्फ ये वाला फाइल काम करेगा। अच्छा जी, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। शाइस्ता आप आ जाइए, शाद नंबर 4। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको समझ आ रही है ना? जी बहुत आसान है। अत्तालिबातु, ये इसमें जुमला अत्तालिबातु दखलनल फस्ला, तो अब इसको फिर ये जुमला बनाना है। दखलत तालिबातु तुल फस्ला, दखला से दखलत हो गया, ये चौथा सीगा है। और ये हम क्यों लाए हैं? क्योंकि हमारा जो इसम ज़ाहिर फाइल आ रहा है वो मुन्नस आ रहा है। तुलाब के साथ दखला आता है और तालिबात के साथ क्या आएगा? तालिबातु, क्योंकि मुन्नस है ना ये। हाँ, अब देखें ये वाला सीगा है। अब यहाँ पे आपने अगर ये ना होता तो आप फाइल इसका बाहर निकाल लेते, ठीक है, लेकिन अब ये आ गया तो इसका फाइल हाइड कर दे। बस ये दो सीगों में ये हमारे पास चांस होता है कि हम हाइड कर लें, बाकियों में नहीं होता। फिर आपको क्या करना पड़ता है, फिर आपको मुताबिक ही लाना पड़ता है। तो दखलत अत्तालिबातु, उसके बाद क्या? अल-फस्ला, क्लास में। हाँ, फसला दाखिल, क्लास में दाखिल। माशाल्लाह, अच्छा किया आपने। एक और कर लें। अच्छा, इसमें क्या था? इसमें दखलत फेल है, अत्तालिबातु फाइल है, अल-फस्ला मफूल है, ठीक है ना? तो उनके अराब आपने सही सही लाने हैं, वरना क्लास जो है ना वो मफूल फाइल बन जाएगी और ये मफूल बन जाएंगी। अच्छा, अब इसमें क्या है? ये मुब्तदा है, क्योंकि जुमले की इब्तदा इसम से हो रही है तो ये मुब्तदा है, और आगे पूरा जुमला फेलिया बन के खबर आ रही है। अब पूरा जुमला फेलिया में क्या क्या है बताइए? इसमें फेल है और मफूलन भी ही है। बस इतना ही है? नहीं, फाइल भी है, फाइल तो मस्ट है ना, फाइल तो मस्ट है जी, फाइल भी है। फाइल फेल, फाइल और मफूल। फाइल क्या बन रहा है? दखलना, नून तो निस्वा है ना, या नून कह सकते हैं, फाइल नून फाइल कह सकती हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है नून का। नून का तो जमा का सीगा है, निस्वा का उसका ये हुन्ना पूरा नहीं लगाते ना? हाँ जी, तो हुन्ना की जगह नून लगाते हैं जी, ठीक है। यही दखल तुन्ना बन जाएगा, दखल तुन्ना बन जाएगा तो उसमें अनतुन्ना ज़मीर होगी, फिर होगा नून ही वहां पे, दखल तुन्ना, उसमें तशदीद आती है तो उसमें अनतुन्ना ज़मीर बन जाएगी फिर, ठीक है। नून इज इक्वल टू अनतुन्ना हो जाएगा, यहाँ पे नून इज इक्वल टू हुन्ना है, ठीक है। दखल ना, अब इसमें फाइल क्या बनेगा? आपका नून फाइल है और अल-फस्ला मफूल है, लेकिन आपके ज़हन में होना चाहिए कि ये नून जमा का सीगा और ये हुन्ना है, ठीक है जी, हुन्ना की अच्छा जगह। अच्छा, अब अगला भी कर लें जल्दी से। अल मुदर्रिसूना खरजू मिनल
फजूली मुब्तदा एंड खबर, खबर है, फेल या खबर। हाँ, तो यहाँ पर आपका मुब्तदा और आगे जो फेल आया इक्वल आया। मुब्तदा अलग चीज है और ये जुमला फेलिया अलग चीज है। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक जमीर चाहिए। कौन सी जमीर इन दोनों को जोड़ेगी? इसमें तो वैसे हुम में है ना, वाव है ना, वाव है, वाव जमीर है यहाँ पे, वाव पे है ना। वाव दोनों को, जो वाव होती है वो हुम होती है, वो उन दोनों को, वाव जो है जमा की होती है तो मुदर्रिसून भी जमा है, तो वो जो है यहाँ पे आपकी कनेक्ट कर रही है, हुम जमीर। अच्छा, अब इसको बनाइए फेलिया में। खरजल मुदर्रिसून मिनल फुजूली। अब खरजा अल मुदर्रिसून, इसम जाहिर फाइल आ रहा है, मुदर्रिसून। आप लोग को बुक में उतार लें, जिसके पास बुक है, इसलिए मैं लिख रही हूँ मुदर्रिसून, खरजल मुदर्रिसून। अब आपका इसम जाहिर फाइल आ रहा है, वो चाहे वाहिद हो, मुसन्ना हो, जमा हो, आप उसके साथ फेल वाहिद का ला सकते हैं। ठीक है, लाना ही चाहिए। अगर आप नहीं लाएंगे वाहिद का तो फिर वो दो फाइल हो जाएंगे। अभी यहाँ पे दो फाइल नहीं हो रहे, यहाँ पे आप हुआ को हिडन किया हुआ आपने, उसको नहीं फाइल बना रहे। ठीक है, क्योंकि ये आगे फाइल आ गया। तो अब आगे क्या लगाएंगे? मिनल फुसूली। वो क्या बन जाएगा? मिनल फुसूली। फुसूली यहाँ पे तो वैसे ये मफूलन भी है, लेकिन यहाँ पे जार मजरूर है। हाँ, जार मजरूर ही बनते हैं ना, मिनल वही मुताल्लिक़ फेल बनते हैं ना, और क्या बनते हैं? जार मजरूर जो होते हैं वही मुताल्लिक़ फेल बनते हैं। मिनल फुसूली मुरक्कब जारी बन के क्या बन रहा है? मुताल्लिक़ फेल बन रहा है। ओके, ठीक है, और फेल के मुताल्लिक़ है। अगर यही जुमला इस्मिया होता उसमें मिनल फुसूली आता, जैसे यहाँ पे ये भी फेलिया है, यहाँ पे भी आपका मुताल्लिक़ फेल बन रहा है। लेकिन अगर जुमला इस्मिया में आ जाए मिनल फुसूली, तो फिर मुताल्लिक़ फेल नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे? वहां तो फेल होता ही नहीं, फिर किसके मुताल्लिक़? खबर के मुताल्लिक़ कहेंगे, उस वक्त मुताल्लिक़ खबर कहेंगे। ये दोनों में आते हैं जुमले की डिटेल बताने के लिए मुरक्कब जारी, तो फिर ये वहां पे मुताल्लिक़ खबर बनते हैं। कभी कभी खुद भी खबर बन जाता है, जब खबर नहीं होती तो खुद भी खबर बन जाता है। ठीक है, अच्छा जी। तो अब इसमें आगे कोई और आ जाए। उस्ताज़ा मैं करूं प्लीज? हाँ जी करिए हुमैरा। जुमलाई रजअ मिन मक्का, रजअ जुमालिया मिन मक्का। जुमलाई रजअ मिन मक्का का हो जाएगा रजअ जुमाली मिन मक्का। आपका मतलब है आप जमील कहना चाह रही हैं, वाहिद बनाना चाह रही हैं आप? नहीं, आपने इसको चेंज नहीं करना। मुदर्रिसूना को तो चेंज नहीं किया ना, यहाँ पे तालिबात को भी चेंज नहीं किया। नहीं, तो मैंने चेंज कहाँ किया उस्ताजा? मैंने सिर्फ रजा लिखा कहा, और ये जुमलाई कहा। आपने जुमलाई तो नहीं कहा, आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा, आपने जुमलाई नहीं कहा, दोनों बार आपने गलत कहा है। तो मुझे लगा जैसे सुनाई वैसे दिया होगा उस्ताजा। नो, आई यूज द सेम। सुनाई गलत। ठीक है, रजा जुमलाई। जुमलाई का मतलब क्या होगा? फ्रेंड्स ना, माय फ्रेंड्स, माय फ्रेंड, माय क्लासमेट्स, माय कोलीग्स, माय क्लासमेट्स जी, माय कलीग्स लेफ्ट फॉर मक्का। रजा का मतलब नहीं, और रिटर्न फ्रॉम मक्का, रिटर्न फ्रॉम मक्का, ये पास्ट टेंस है। ठीक है, मैं मक्का जी उस्ताद। अच्छा, अगला कीजिए। अखवाती गसलना अल कुमसान, तो ये हो जाएगा गसलत अखवाती अल कुमसान, कुमसाना। अच्छा, ये अल कुमसाना पे जबर क्यों आ रही है? ये मुझे समझ नहीं आ रहा। ये मफूल है ना उस्ताजा? हाँ, मफूल बन रहा है। ठीक है, और एक जबर क्यों आ रही है, दो क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ये मुनसरिफ है। हाँ, इसको आप डिप्टोट मत समझना कि डिप्टोट है इसलिए जबर आ रही है। ये मफूल बन रहा है इसलिए जबर आ रही है। ठीक है जी। तो ये मफूल था। वेरी गुड, माशाल्लाह। और गसलत, क्योंकि अखवाती मुअन्नस है ना, अखवाती मेरी बहनें। अब जब फेल पहले आएगा तो वाहिद आएगा, गसलत अखवाती अल कुमसाना।
कमीज की जमा है ये। अच्छा नंबर 8 कोई और करने आके? अभी बहुत सारे लोग आगे माशाल्लाह क्लास में। यास्मीन आप आइए, आपको तो समझ ही नहीं आएगी, आप अभी आई हैं शायद। मैम मैं शुरू से हूँ बट मुझे नहीं पता, आप मुझे आजकल बुलाती ही नहीं, आप भूल जाती है मैम। नहीं मैंने आपको शुरू में बुलाया ना एक दफा। नहीं अच्छा फिर शाजिया को मंडे को बुलाया भी होगा। टर्न नहीं आई, शाजिया में और मंडे आपके को भी नाम में टर्न मुझे नहीं आई। थोड़ा, शाजिया और आपके नाम में थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। चलें अब ये करें, पढ़िए ये वाला करिए। अत्तुजारु फतहुद दकाकीना। अच्छा तो अब इसमें क्या करेंगी? सब ये आपका मुब्तदा है और ये क्या है? पूरा जुमला बन के ये क्या बन रहा है? खबर खबर बन रहा है। तो इसमें फतहु अद्दकानीना में आपको पता है फेल क्या है, फाइल क्या है, और ये क्या बन रहा है? दकानी। जी फतहु जो है वो यहाँ पर जो क्या कहते हैं, ये फेल है फतहा, और उसमें हुम की जमीर यानी कि हुम फाइल है, और दकानीन क्या बनेगा? मफूल। मफूल बनेगा। ठीक है जी अच्छा सही है। अच्छा और ये पूरा जुमला बन के क्या बनेगा? पूरा जुमला बन के क्या बन जाएगा? पूरे जुमले के अंदर क्या बन? खबर खबर। और मुब्तदा किधर है? अत्तुजारु। देखिए मुब्तदा मार्फा ही आ रहा है जी, सब जगह पे मुब्तदा मार्फा ही आ रहा है। यहाँ जुमला ई में भी मुब्तदा मार्फा है, यहाँ पे भी मार्फा ही है। अब आपके ज़हन में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो मैं इसका जवाब अभी नहीं दे सकती कि ये मार्फा क्यों है, ठीक है ना? लेकिन एक दिन मैं इसके ऊपर क्लास लूंगी कि ये तो नकीरा है, इस पे तो आपके माइक में शोर आ रहा है सिस्टर? नहीं ये ताहिरा के माइक। तो ताहिरा ने क्यों ओपन रखा हुआ है? नहीं बाजी मेरे माइक में शोर नहीं आ सकता। नहीं आपने ओपन रखा हुआ इसलिए शोर आ रहा है। वो फैन जैसे आवाज आ रही थी, हवा जैसी। अच्छा जब दो माइक, देखिए मेरी बात सुने, मेरी बात सुने तहम्मुल से। जब दो माइक खुले होते हैं ना और मेरा भी खुला होता है, 3 हो जाते हैं तो फिर आवाज में शोर आता है। तो इसलिए अपने माइक को कोशिश करें अच्छे बच्चों की तरह म्यूट करके रखें, बावक्ते जरूरत खोलें, ठीक है? तो वरना तो सब रिकॉर्डिंग खराब हो रही है ना। अच्छा अब इसमें देखिए मैं आपको कभी बताऊंगी कि ये भी मार्फा है, ये भी मार्फा है, हालांकि इसके ऊपर अलिफ लाम नहीं आ रहा, ठीक है? किसी एक ना एक स्टूडेंट को पता होगा कि ये क्यों मार्फा है, लेकिन अभी सबको नहीं पता इसलिए मैं अभी नहीं छेड़ रही इसको। तो ये भी मार्फा है, ये भी मार्फा है, ये भी मार्फा है, सब मुब्तदा मार्फा आ रहे हैं। अच्छा क्योंकि इसमें यहाँ मुतकल्लिम है ना साथ में उस्ताजा, इसीलिए फिर वो जुड़ा हुआ है ना, माय क्लासमेट्स माय सिस्टर्स, तो फिर वो मारिफा हो जाता है ना उस्ताजा। नहीं ये पैर में इसी वजह से ना कि जैसे कि इनके हकीकी मुज़क्कर मुअन्नस दोनों होते इसलिए ना, कैसे कहते हैं वो। लेकिन वो आपको जो टर्म इसके लिए यूज होती है ना कि ये क्यों मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब इजाफी है। नो अभी इस पे टाइम वेस्ट नहीं करें, फिर मैं किस दिन इसको समझाऊंगी, ठीक है? इसके लिए एक टर्म यूज होती है मुदाफ इलल मारफा। किसी को ये टर्म पता है? नहीं। इलल मारफा, ये इसके लिए टर्म यूज होती है। इसको लिख लें और फिर मैं इसको डिस्क्राइब करूंगी किस दिन, ठीक है? अगर मारफा जो है ना मुदाफ, मारफा की तरफ मुदाफ हो रहा हो तो वो भी मारफा हो जाता है। इसका ये मतलब है, मुदाफ इलल मारफा का मतलब है कि अगर मुदाफ जो है वो मारफा की तरफ मुदाफ हो रहा हो, जो मुजाफ है आपका वो मारफा की तरफ मुजाफ हो रहा हो तो वो ऑटोमेटिक मारफा हो जाता है। समझ आ गई बात? चलिए आप इसको करते हैं हम। रजा आपने क्या बनाया था आगे? जुमला नंबर 8 चल रहा है मेरा। अत्तुजारु फतहु दकाकीना। अच्छा चलिए ठीक है। हाँ तो क्या ये होगा फतहत तुजारु। फतहत क्यों लगा रही है मेरी बहन? नहीं वो ता पे जोड़ी, ये फतह आएगा तो ये हा को मैं उस ता में जोड़ के पढ़ी, फतहत तुजारु, वहाँ पे वो शमसिया है ना। हाँ फतहत तुजारु, आगे तुजारु दकाकीना। अद्दकाकीना, इसको चेंज नहीं करना, ठीक है? अद्दकाकीना। अब अद्दकाकीना किस वजन पे आ रहा है आपको पता है? अलिफ लाम को हटा के देखें। दकाकीन फ़ाइला क्या?
मफाइलू के वजन मफाइलू के वजन मुझे सिर्फ 3 वजन पता है इसमें, फ़अला, फ़इला, फ़उला, बस इतना ही मुझे पता है फिलहाल। अच्छा ठीक है आप, अच्छा फिर आप देखिए यहाँ पे आप दकाकीना लगा देंगी, फतहा अत्तुजारू, दकाकीना, ठीक है। इसको कीजिए नंबर 9 को। अत्तबीबातु ज़हबना इलल मुस्तशफ़ा, मुस्तशफ़ा, यहाँ पे है तालिबे इल्म हॉस्पिटल की तरफ गई, तो यहाँ पर हो जाएगा तबीबातु, जगह में 4 आएगा, ज़हबत, ज़हबत तबीबातु, अत्तबीबातु इलल मुस्तशफ़ी, ज़हबत अत्तबीबातु, ठीक है, इलल मुस्तशफ़ा, ठीक है। अब इलल मुस्तशफ़ा जो है ये आपका मफूल बन रहा है, ठीक है। तबीबात का मीनिंग क्या होता है? डॉक्टर्स। डॉक्टर्स, पहले आपने क्या बोला? स्टूडेंट्स, तालिबात, ठीक है। अच्छा सॉरी हाँ, तो वो अभी कोई नया होगा तो वो तालिबात ही याद कर लेगा। अच्छा यहाँ पर क्या है फिर नंबर 10 में? तुल्लाबु फहीमुद दरसु, तालिबे इल्म ने सबक को समझा। हाँ, तो क्या आएगा यहाँ पर आएगा फहीमा, फहीमा अत्तुल्लाबु अद-दरसा, ठीक है। फहीमा, फहीमा होगा बाप समिया से, फहीमा अत्तुल्लाबु अद-दरसा, ठीक है। क्लियर होगी बात? तो जब आप इस्म जाहिर फाइल बनाएंगी तो आपने फेल को वाहिद लाना है, और जब आप इस्म जाहिर को फाइल नहीं बनाएंगी, जमीर को बनाएंगी, तो फिर आप कोई भी सीगा यूज कर सकते हैं, कोई भी सीगा यूज कर सकते हैं। जो भी करना होगा वही करेंगे, लेकिन फिर आपका कोई भी सीगा आ सकता है। सही है? कर लेती हूँ। अच्छा चलिए आगे करते हैं नंबर 9, कोई और आ जाए कर लें, 9 और 10 बस कर दें। अच्छा बस कर दें, ठीक है, टाइम हो गया आपका, फिर बस करते हैं। फिर आगे इंशाल्लाह एक्सरसाइज आप खुद कीजिएगा, इसमें सिर्फ रीड करना है एंड रिमेंबर क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। खारजा फेल है, अब्दुल्लाबू क्या है, ये फाइल है, और अब ये ज़हाबू क्यों आया यहाँ पे? यहाँ पे इस्म जाहिर फाइल था, फेल के बाद इस्म जाहिर फाइल था, तो वो फेल वाहिद आया। यहाँ पे फेल जमा क्यों आया, बस ये बता दें। यहाँ पर बात दूसरी हो रही है मेरे ख्याल से, जो है ना जुड़ रही है। यहाँ फेल शुरू, देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ फेल शुरू में नहीं आ रहा, बाद में आ रहा है। तो जब भी फेल शुरू में आएगा ना, तो वो आपका क्या होगा, वाहिद होगा। यहाँ भी वाहिद शुरू में आ रहा है, यहाँ पे भी। जब बाद में आएगा, जब फेल बाद में आएगा, तो वो क्या होगा, वो जमा होगा। जमा क्यों है? जमा के अलावा भी हो सकता है, मुसन्ना भी हो सकता है, वाहिद भी हो सकता है। इसके मुताबिक लाना है ना, ये इसके मुताबिक लाना है, इसलिए जमा ला रहे हैं जमा। इस पे नेक्स्ट क्लास में फाइल के मुताबिक मफूल, फाइल के मुताबिक होगा। जब फेल बाद में लाएंगे तो फाइल के मुताबिक लाएंगे। फाइल क्या है, वो आपका तुलाबू है। फाइल क्या है आपका, तुलाबू है, नासू है, तो उसके मुताबिक लाएंगे। सही है। निकले स्टूडेंट, और स्टूडेंट निकले और वो गए, वो गए, ठीक है। और किधर गए उसकी जरूरत नहीं है, स्टूडेंट निकले और वो चले गए। अब यहाँ पे करा तुल्लाबू, पढ़ा स्टूडेंट ने और उन्होंने लिखा। अकलन्नासु, लोगों ने खाया और उन्होंने पिया। तो फेल बाद में आएगा तो इस फाइल के मुताबिक आएगा। पहले आएगा, फेल से पहले आएगा, जहाँ पे फाइल से पहले आ रहा है तो वाहिद आ रहा है। चलिए अब इसी पे गौर फिक्र कीजिएगा जो मैंने पढ़ाया। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ग्रामर की अच्छा समझ आया कुछ सी आपको जो मैंने पढ़ाया? मैंने आपको माइक पे बुलाया था लेकिन आप थी नहीं क्लास में, इसलिए मैंने पूछा आपको समझ आया? चलिए ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
जज़ाकल्लाह खैर उस्ताज़ा। इस पे गौर फिक्र करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। फेल शुरू हो गया आपका। जी जी इंशाल्लाह।